if you can hear me. How is everybody doing? Hi, hi, hi. I can see so many people here already. Folks, with that being said, now that everybody... So yes, I'm so sorry to hear that, Priya, but I really recording of it either. I hope this is... Today, we will take you through some of the tips, tricks, and hacks on how you can magnify and grow your presence on social media by the one and only Aanchal Kapoor. Aanchal is my personal favorite, and you'll soon know why. She was initially a school teacher who joyously turned her subject into makeup and now teaches hundreds of budding makeup artists like you. She has learned from pioneers and beauty enthusiasts such as Bhumika Bell and Shweta Gaur and is here to teach us her lesser known techniques on how you can grow your presence on social media. So with that being said, let us quickly call her on board. Hello, Aanchal. How are you doing today? Hi. Hi, how are you? I am great. I love your makeup. I love your presence. And I really love that you are all ready and prepped up for today's session. So yes, आज का session किस बारे में? Okay, so as you know, आज का session is all about social media, right? Social media is a very big and a popular platform nowadays. So how to grow yourself, how to make your work visible to the audience, to grab their attention so that they give you work, they acknowledge your work, and because of that, you can grow and be a popular makeup artist or maybe a beauty blogger, anything, whatever you want. And thank you so much for all the lovely compliments which I can see in the chat box. अच्छा ठीक है, so आज I will keep it slow. So as you know, she told I'm a teacher and I'm in a habit of speaking way too fast. मेरी speed थोड़ी तेज होती है बोलते हुए. So today I'll keep it purposely slow. ठीक है, but I'm going to cover everything, whatever doubts आपके mind में हैं, जो भी है वो सब मैं clear करूंगी साथ. ठीक है. So right. So most of us, हमारे साथ अभी जितने भी आप हो या मैं हूँ, हम usually makeup से associated है. या तो वी वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, या हमें ब्यूटी ब्लॉगर बनना है, या मे बी हमें आगे जाके अपना बिजनेस क्रिएट करना है, सैलून बनाना है. पर उसके लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड टू नो हाउ टू मार्केट आवरसेल्फ. हमें अपने आप को पहले पब्लिक के आगे थोड़ा फेमिलियर करना है, राइट? बिकॉज so there are so many makeup artists outside in the market. Competition भी सब कुछ है, but you know, you should know how to keep your work different from others, how to show your work differently, ताकि आपके पास लोग अट्रैक्ट होके आए, आपको चांस दे. So क्या क्या कर सकते हैं? So initially I'll let you know my story कि मैंने कैसे कैसे चीजें समझा, कैसे कैसे मैंने छोटी छोटी गलती करी, छोटी छोटी चीजें मुझे बाद में रियलाइज हुई कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो शायद ये बेटर रिजल्ट होता. So I'm going to share my journey with you also, everyone, today. So as a makeup, I was a makeup lover since my childhood. ठीक है, अब मेकअप तो सीख लिया कैसे करते हैं, मेकअप भी आ गया, प्रैक्टिस भी कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली इनिशियल स्टेज पे वर्क नहीं आ रहा था, काम नहीं आ रहा था, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट देन देयर वाज अ स्टॉप. एक स्टॉप था. क्यों था? एनालाइज इट. एनालाइज योर पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने प्लेटफॉर्म्स पे हो? आजकल सिर्फ इंस्टाग्राम इज नॉट द ओनली पेज. टुडे यू हैव गूगल, टुडे यू हैव यूट्यूब, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास स्नैपचैट है, राइट? तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मेक श्योर आप जितने भी सोशल वेबसाइट्स हैं, जितने भी साइट्स हैं, आप अपने आप को एनरोल करो उसमें, सो दैट what if I want to search कि who is Aanchal or maybe who is Priyanka, who is Raina, तो मुझे पता कैसे चलेगा? जब मैं गूगल पे सर्च करूं, मैं देखूंगी कहाँ कहाँ वो लिस्टेड है. इज शी अ गुड वन? रिव्यूज अच्छे हैं या नहीं है? अगर आप अपने आप को गूगल पे या वेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, कितने सारे उनकी वेबसाइट्स है, एनरोल नहीं करोगे, तो शायद मैं आप पे इतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगी. अगर आपके इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स कम है, तो मैं मुझे लगेगा कि पता नहीं ये मेरे फेस पे कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, सिर्फ 3 या 4 या 10 पिक्चर से मैं कैसे एनालाइज करूंगी? सो ये बहुत सारी क्लाइंट के माइंड में कंफ्यूजन होती है, राइट? अब वो आपको क्लियर करना है. थिंक एज अ क्लाइंट. अपने आप को एज अ क्लाइंट सोचो कि अगर आप क्लाइंट हो, आपको एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, रीजनेबल भी चाहिए,
आप एक न्यू पर्सन के पास जा रहे हो जो शायद अभी जिसके इतने फॉलोअर्स नहीं है, या मे बी जो इतना उसके पेज में पिक्चर्स कम है, राइट? सो व्हाट विल यू डू? आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? अच्छा, ना देयर आर पीपल आउट देयर जो गूगल से पिक्चर्स कॉपी करके इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट में डाल देते हैं. डोंट यू एवर डू दैट, कभी भी वो मत करो. बिकॉज इंस्टाग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने रीच है उसकी, कि दे विल द पर्सन जिसका मेकअप आपने शायद स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिया अपने अकाउंट में, किसी भी तरह उसका फॉलोअर या उसका फ्रेंड या उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ वो बता देंगे एक दूसरे को, और वो चीज आपकी बैन हो सकती है इंस्टाग्राम पे. दे कैन पुट यू ऑन दैट ब्लॉक थिंग, मे बी दे कैन कंप्लेंट अगेंस्ट यू ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी वजह से योर इंस्टाग्राम विल बी ऑन जीरो. वो क्या होगा, योर फॉलोअर्स विल बिकम लाइक कंफ्यूज कि ये इनका वर्क है भी या नहीं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू टेक केयर अबाउट. सो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले द मोस्ट पॉपुलर पेज इंस्टाग्राम, देन वी विल कम टू अदर वेबसाइट्स. ओके, सो इंस्टाग्राम पे अपने आप को हाउ डू यू हैव टू कीप योरसेल्फ, हाउ यू नीड टू शो योर वर्क ऑन इंस्टाग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, आपका जो एक सबसे बड़ा बायो होता है, आपका नेम होता है, इट शुड बी क्लियर. वो क्लियर करना चाहिए नेम कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो या ब्यूटी ब्लॉगर हो. ठीक है, दैट मीन्स इफ माय फर्स्ट नेम इज आंचल, सो आई विल ट्राई टू कीप इट इन सच अ वे जिनसे सबको पता चले मेरा नेम पढ़ के, इंस्टा हैंडल पढ़ के, कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, राइट? सो आई विल कीप इट लाइक आंचल मेकओवर्स, मेकअप बाय आंचल, फेस स्टोरीज बाय आंचल, व्हाटएवर. ये मैं आपको एग्जांपल्स दे, करेक्ट? अगर मैं सिर्फ लिख दूं आंचल सिब्बल, nobody will recognize क्या है ये आंचल सिब्बल है, but क्या कर रही है, who is she? Is she a makeup artist? Is she just an influencer or a blogger? So आपका इंस्टा हैंडल क्लियर होना चाहिए. अननेसेसरीज की इमोजीज मत यूज करो, उससे बहुत शो होता है कि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल पर मे बी जस्ट अ ब्लॉगर, नॉट इवन अ ब्लॉगर. आजकल तो ब्लॉगर भी बहुत सिंपल रखते हैं, यू नो, दे आल्सो लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल एंड क्लियर. सो ट्राई टू कीप इमोजीज लेस एंड पॉइंटर्स पे लिखो सब कुछ. यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, यू आर अ सर्टिफाइड. अगर आप सर्टिफाइड हो, ऑफ कोर्स आप सर्टिफाइड हो, तभी आप आज एयर ब्लैक में हो, राइट? एंड एयर ब्लैक इज सच अ बिग platform that who is giving you certificates from different makeup artists. तो लिखो that you are certified from A artist or B artist or C artist. Write their name because लोगों को confidence आएगा कि oh yes she is certified from Meera Sakrani or maybe she is certified from Neena Bhushan, Amrit Kaur, different artists जो जिसको भी आप जिस पे भी आपको faith है, जिसका भी आपको काम पसंद है, right? I'm not saying कि इन्हीं के पास जाओ, whatever suits you, right? तो उनका सर्टिफिकेशन के आगे लिखो सो दैट दे शुड नो कि यस ही और शी इज अ सर्टिफाइड पर्सन एंड दैट टू फ्रॉम अ सर्टिफाइड आर्टिस्ट, गुड आर्टिस्ट. सो ये आपके बायो में बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट? छोटी सी जो पिक्चर होती है इंस्टाग्राम पे, कीप इट एज अ सम जिसमें उसमें मेकअप रिफ्लेक्शन होना चाहिए. चाहे अपनी पिक्चर डालो पर उसमें आपका मेकअप दिखना चाहिए, या क्लाइंट की पिक्चर डालो उसमें मेकअप क्लियरली दिखना चाहिए, सो दैट हर एंगल से लगे कि इट्स अ पेज, इट्स अ मेकअप आर्टिस्ट पेज, ये मेकअप आर्टिस्ट का पेज है तो मुझे फॉलो करना है. ठीक है, तो अपने बायो पे वर्क करो, अपने इंस्टा हैंडल नेम पे वर्क करो, और बायो में क्लियरली लिखो दैट यू आर सर्टिफाइड और नॉट, व्हाटएवर. अगर सर्टिफाइड हो दैट्स द बेस्ट थिंग, कोर्स आप हो तभी आप यहाँ पर हो, तो आप लिखो कि यू आर अ सर्टिफाइड पर्सन. नाउ लेट्स कम, नीचे आते हैं. नीचे क्या होती है? पिक्चर्स, राइट? अब मैं क्लाइंट, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे पिक्चर्स देखनी है, मुझे डिफरेंट पिक्चर्स देखनी है, मुझे जितनी क्लियर पिक्चर होगी मेरे लिए उतना बेटर है, जितनी अनएडिटेड होगी उतना बेटर है. सी आई नो आज की डेट पे हम कहते हैं फिल्टर्स नहीं लगाना चाहिए, आई एग्री वी शुड नॉट पुट फिल्टर्स, बट बी स्मार्ट. कब एक्चुअली यू एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको पता होगा कि जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं या हम जब मेकअप करते हैं एक डिफरेंस आता है. कभी कभी हमारे जो रियल कलर्स है आई मेकअप का या बेस का, लिप्स का, वो इतना पॉप आउट होके नहीं आता. आई एम श्योर ये सबके साथ होता होगा. यू नीड टू नो हाउ टू एडिट योर पिक्चर्स लाइट अ बिट. देखो एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम दीज डेज आर सेइंग वी डोंट एडिट आवर पिक्चर्स एट ऑल, नॉट नो फिल्टर एट ऑल. नो फिल्टर ठीक है, पेरिस फिल्टर की बात नहीं कर रहे. सिर्फ पेरिस फिल्टर इज नॉट दी ओनली फिल्टर, बिकॉज पेरिस फिल्टर बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ इस पे पेरिस फिल्टर है. वो आजकल कोई नहीं लगा रहा, दैट्स ट्रू. But there are some other features on apps which you know help to pop out your makeup, जो आपके मेकअप को हाईलाइट करके दिखाता है, and that's not a bad thing I suppose.
बिकॉज आप अपने फोन में पिक्चर क्लिक कर रहे हो, आप हर बार डीएसएलआर तो यूज नहीं कर रहे हो जिसमें हर चीज क्लियरली नजर आए, राइट? आप आईफोन भी यूज कर रहे हो, पर आईफोन की भी एक कैपेसिटी है कि कितनी ज्यादा रियल पिक्चर वो दिखा रहा है. सो इट्स ओके टू, यू शुड नो हाउ टू एडिट योर पिक्चर्स अ लिटिल बिट. सो एडिटिंग इज नॉट अ हार्म. हाँ, बट बिल्कुल 100 सिर्फ 150 मत कर दो कि बिल्कुल अलग इंसान लगे. ठीक है, स्लाइड थोड़ा बहुत होना चाहिए. Yes, now app recommendation, as we all are, most of us are beginners, right? I won't say you कि जाते ही कोई paid apps ले लो या Facetune ले लो, ठीक है? You have Beauty, B612 is a very good application, right? B612. उस application पे you can highlight your makeup little bit, ठीक है? Do that, explore करो. अपने ऐप स्टोर पे जाओ, फ्री मेकअप पेजेस जो होते हैं, एडिटिंग एप्स होती है, उनको डाउनलोड करो. देखो ये दिस इज योर होमवर्क. डाउनलोड डिफरेंट एप्स, लर्न करो. हर एक ऐप में अलग अलग चीज होगी, एक ही ऐप में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा. सो यू नीड टू फिगर आउट कि कौन सा ऐप आपको सबसे ज्यादा सूटेबल है. एंड अपलोड योर पिक्चर्स. अपलोड इट. अपलोड कर दिया, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर ले ली, डिसेंट आपने एडिट कर ली, अपलोड कर दिया. अब अपलोड मीन्स यू नीड टू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेड एप्स बिकॉज मैं खुद पेड एप्स नहीं यूज करती, एंड आई रियली डोंट वांट यू टू इन्वेस्ट योर मनी इन ईच एंड एवरीथिंग. हर चीज में जरूरी नहीं है पैसा खर्च करना. सो डोंट यूज एनी पेड एप्स. अगर आप यूज करते हो दैट्स पर्सनल चॉइस, पर अगर आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया, डोंट स्टार्ट. अभी जस्ट एक्सप्लोर, अपना एक्सप्लोर करो. जैसे B612 मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी वेरी गुड एप्लीकेशन. उसमें करो आप थोड़ा बहुत, ठीक है? नाउ आफ्टर दैट, व्हेन यू अपलोड अ पिक्चर, यू शुड नो आपको नीचे कैप्शन क्या लिखना है. अगर आपने एक मॉडल ली है, फॉर एग्जाम्पल, उस पर आपने एंगेजमेंट मेकअप किया है, ठीक है, आपने ग्लिटरी आईज करा है, आपने ड्यूई बेस की, आपने न्यूड लिप्स रखे, तो आप कैप्शन भी अपने मेकअप के रिलेटेड रखोगे, करेक्ट? कैप्शन के बाद नाउ हियर द मेन थिंग्स कम, हैशटैग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हैशटैग्स डजंट मीन कि आप कुछ भी हैशटैग डाल दोगे, ओके? क्योंकि इंस्टाग्राम भी एक सोशल जो नेटवर्क है, वो भी एक तरीके से वर्क होता है, उसका भी एल्गोरिथम होता है. अगर मैं पिक्चर डाल रही हूँ मेकअप से रिलेटेड, मगर मैं हैशटैग डाल रही हूँ कुछ और रिलेटेड, जो मेकअप से रिलेटेड ही नहीं है, जो पिक्चर से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगा. सो जो आपकी पिक्चर है उसी से रिलेटेड आपके हैशटैग्स होने चाहिए. अब चेक करो कि आपकी पिक्चर पे मैक्सिमम लाइक्स किस टाइम पे आता है. पहले तो मैंने आपको बता दिया, अपने बायो पे वर्क करो. सेकंड, वर्क ऑन पिक्चर्स, गुड क्वालिटी पिक्चर्स, लर्न हाउ टू एडिट देम. उसके बाद सही हैशटैग्स यूज करो. हैशटैग्स के बाद व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको अपना इंस्टाग्राम पेज को पहले तो नॉर्मल पब्लिक से पब्लिक करो. अपने पेज को, मतलब सबने किया होगा इंस्टाग्राम पेज को पब्लिक. पब्लिक के आपको 30 डेज बाद हैशटैग, एग्जांपल लाइक हैशटैग स्मोकी आईज. अब मेरा ये लुक है, ठीक है, अब मैं इसकी पिक्चर क्लिक करूंगी तो मैं क्या हैशटैग्स डालूंगी? हैशटैग स्मोकी आईज, हैशटैग स्मज लाइनर, हैशटैग न्यू लिप्स, हैशटैग हाइलाइटर, हैशटैग माय न्यू लुक. यू कैन राइट सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, हैशटैग मेकअप आर्टिस्ट. अपने हैशटैग्स भी क्रिएट करो एक दो, ठीक है? ट्राई टू चेंज योर हैशटैग्स. ये नहीं है कि आपने एक बार जो डाला है उसी को रोज कॉपी पेस्ट कर रहे हो. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो यू नीड टू चेंज योर हैशटैग्स विद टाइम. आपको अपने हैशटैग्स भी चेंज करने पड़ेंगे, ओके? ऑल्सो यूज एप्स लाइक, यू नो, देयर आर सो मेनी हैशटैग जनरेटर एप्स. अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हैशटैग जनरेटर एप्स गूगल करो, वो आएंगे, टॉपिक डालोगे, एंड देन दे विल गिव यू मल्टीपल हैशटैग्स. चूज आउट ऑफ देम, ठीक है? नाउ आफ्टर हैशटैग्स यू हैव टू चेक योर एल्गोरिथम, ठीक है? एल्गोरिथम से क्या क्या पता चलता है इंस्टाग्राम पे? पहला आपको ये पता चलता है कि आपके फॉलोअर्स किस टाइम पे एक्टिव है, किस टाइम पे एक्टिव कम है और किस टाइम पे सबसे ज्यादा है. कौन से डेज हैं? कुछ डेज पे एक्टिव नहीं होते इंस्टाग्राम यूजर्स, आपके फॉलोअर्स. कुछ डेज पे बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे होते हैं. तो उन्होंने आपको टाइमिंग्स तक बता रखे हैं कि इससे इस स्लॉट पे सबसे ज्यादा आपके फॉलोअर्स एक्टिव है. उस टाइम पे कोशिश करो, आपने कोई भी कंटेंट क्रिएट करा उसको पोस्ट करने की.
ठीक है, अब आपने पता लगा लिया कि किस टाइम पे सबसे ज्यादा वो एक्टिव है, तो आप उसी टाइम पे कोशिश करोगे कि अपना पोस्ट करो, और रैंडमली भी पोस्ट करो, क्योंकि कभी कभी आपका कोई टाइम हिट कर जाता है, देन आपको समझ आ जाता है कि ओ दिस इज द टाइम जब सबसे ज्यादा मेरे को लाइक्स आते हैं, तो इस टाइम पे मैं अब रोज रेगुलरली ऑन एंड ऑफ पोस्ट करूंगी। ओके, आपने टाइम पता लगा लिया, आपने पोस्ट भी कर लिया, अब क्या, अब यू हैव टू रीशेयर योर पोस्ट। आपने कंटेंट तो क्रिएट कर लिया, कंटेंट को शेयर भी करो, शेयर योर कंटेंट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि इसमें व्यूज नहीं आए, रीशेयर इट ऑन स्टोरी, इट्स ओके टू Yes. share. We Yeah, can- I'm so sorry, there is electricity off, so Wi-Fi right now. I'm Okay. sorry, I'm on 4G right now, so if you cannot see me, just give me 2 minutes. Okay, meanwhile I'm No problem. meanwhile I'm No speaking. problem, no problem. Achal, I'll just take 30 seconds of your session to Hmm. give them some Sure. guidelines. Yeah, तब तक you can go ahead and figure out your lighting. नहीं तो अंधेरे Yeah, में yeah. आज हम discussion कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. Okay. So folks, like I said, this will be a discussion session as it has been. ठीक है, ये सेशन दोनों हिंदी और इंग्लिश में रहेगा. हम कोशिश करेंगे कि हम जितना हिंदी में बात करें उतना ही इंग्लिश में भी हम बात करें. बट अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ भी रिपीटेड या ट्रांसलेटेड चाहिए हो, do let us know in the chat box and we'll definitely help you through that as well. Yeah. There will be a recording of this, like I said, and abhi ke liye make sure that everybody writes down your notes. Even though a recording is available, your handwritten notes go a long way. So agar aap, if you were just watching, make sure that everybody takes notes as we go, because these techniques, these tips and tricks, एक बार जब आप करने पे आते हैं तो you tend to forget, right? So I want each and every one of you to take notes, keep your videos on so that we can see that all of you are being interactive. If you have any questions, we'll keep on noting them down and we'll make sure that each and every question is answered. Abhi ke liye Aanchal will give us her overview of what she thinks your social media game should be. The specific questions will be answered whenever we can after taking a break or towards the end as well. Okay. Perfect, Sabya. We'll go a little slow. So I think, Aanchal, your power is back. We can continue. It's no, Yeah, it's back. It's we back. saw. Okay, great. Okay, so yes, everyone, I'm very sorry. It's back now. अच्छा ठीक है ना, मैं और स्लो चलूंगी और मैं आपको रिकैप भी कराते रहूंगी साथ साथ कि whatever we have said, what I have told you, I'm going to recapitulate it with you. Okay, so first of all, Insta bio. Second, post your pictures, take good quality pictures, post it, check it what time your followers are active, and then generate good hashtags. अच्छे hashtags create करो. Now pictures, that doesn't mean कि आपने एक मेकअप किया और आपने एक पिक्चर डाली and you're done. You should play with your content. Obviously, there are so many people out there who are doing makeup and they are posting pictures. तो आपको थोड़ा सा अपना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कंटेंट में चेंजेस जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो. How will they be attracted? अच्छा, now you tell me, as a makeup artist, as a budding makeup artist, आपको सबसे ज्यादा किसी के Instagram पेज पे क्या अट्रैक्ट करता है? Tutorials. Do you all agree with me? Makeup tutorials आपको अट्रैक्ट करते हैं या नहीं? Yes. Makeup tutorials ही ऐसी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें, because we want to learn. As a makeup artist, I still want to learn so many techniques, so many different eye looks. There are so many complicated eye looks also. I also want to learn as a makeup artist. I'm sure सबको learn करना है यहाँ पर. Correct? So सबसे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं जब वो देखते हैं ऐसी रील्स जिसके अंदर मेकअप लुक्स वो अपने क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपने ट्यूटोरियल्स दिखा रहे होते हैं आई का या बेस का या लिप्स का. So do that, create tutorials. It's okay. जरूरी नहीं है कि आपने आज मेकअप प्रैक्टिस कर रहे हो, you are a makeup artist now. It's not necessary कि आपने difficult से start करना है. Easy से start करो. You know, basic से start करो. There are so many people still out in the world जिनको नहीं मेकअप आता. I know, अभी क्या है इंस्टाग्राम पे आप लोग मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करते हो तो आपका एल्गोरिथम सारा मेकअप रिलेटेड आता होगा इंस्टाग्राम पे. You must be getting furious कि oh my god, in the market there are so many makeup artists, क्योंकि सारा टाइम मेरे इंस्टाग्राम पे मेकअप ही तो नजर आता है, because that's our algorithm.
अगर आपका इंस्टाग्राम समझ गया कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेकअप में है, इसलिए वो आपको सबसे ज्यादा मेकअप की चीजें दिखाता है, सो दैट आप इंस्टाग्राम पे हुक्ड रहो, करेक्ट, आप इंस्टाग्राम पे स्टिक रहो, क्योंकि वो आपको आपके मतलब की चीज दिखा रहा है. सो डोंट गेट वरिड. चीजें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू बेसिक मेकअप ऑन देयर सेल्फ एंड दे वांट टू लर्न. एंड वो कैसे लर्न करते हैं? ट्यूटोरियल से. देयर आर सो मेनी बडिंग मेकअप आर्टिस्ट जो सीखना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स मेकअप कैसे करते हैं. सो दे लाइक टू सी ट्यूटोरियल्स. अब हाउ टू क्रिएट ट्यूटोरियल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ गुड रिंग लाइट. ठीक है, बाय अ गुड रिंग लाइट. यू हैव योर फोन, फोन को सेट करो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी प्लेन वॉल. नहीं है आपके घर में कोई प्लेन वॉल तो टेक एनी गुड फैब्रिक. ब्लिंगी फैब्रिक्स होते हैं ना आजकल जो मार्केट में, कहीं भी उसको पेस्ट करके लटका दो. स्टैंड इट इन फ्रंट ऑफ इट, ताकि यू गॉट अ गुड बैकग्राउंड. आपके पास एक अच्छा सा बैकग्राउंड हो गया, एक रिंग लाइट हो गई, एक फोन हो गया. अब आपने क्या करना है? क्रिएट करनी है लुक्स, स्मोकी आई क्रिएट करनी है, वो एनीथिंग विल वर्क. आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए. या आपको डेकोरेट करना है, डेकोरेट करो, इट्स अप टू यू. डिफरेंट करना है, कुछ भी करो, अप टू यू. बट जस्ट क्रिएट कंटेंट जो लोगों को इंटरेस्ट करे. वो वैसे कंटेंट कैसे क्रिएट होते हैं? मेकअप ट्यूटोरियल्स. आई एम टेलिंग यू, मेकअप ट्यूटोरियल्स इज समथिंग जो आजकल हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है कि ये पर्टिकुलर आई लुक कैसे क्रिएट हुआ है, कैसे किया है मेकअप इसका. सो ठीक है, क्रिएट इट. अभी नहीं आएंगे लाइक्स, अभी नहीं आएंगे व्यूज, इट्स ओके. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. Now, the second most important part of getting followers is that you have to be consistent. Consistency के बिना नहीं होगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बना लो, मगर अगर आप रेगुलर नहीं रहे, तो इंस्टाग्राम विल शॉर्ट, फॉलोअर्स जो आपके एग्जिस्टिंग भी होंगे ना, वो भी आपको अनफॉलो करना शुरू कर देंगे. बिकॉज ये भी होता है, देर आर डेज आपके 10 फॉलोअर्स बढ़ गए ना, अचानक से देर विल बी अ डेज आपके 1-2 माइनस होते जा रहे हैं साथ साथ. सो यू हैव टू कीप देम एंटरटेन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट यानी हफ्ते में आपके पास 7 दिन है. टेक 4 days फॉर योर सेल्फ, फॉर योर मेकअप. 4 days में से alternate days at least post your makeup tutorials. After alternate days you will see कि आपके धीरे धीरे व्यूज भी बढ़ रहे हैं. लाइक्स नहीं आ रहे तो एटलीस्ट यू कैन सी आपके व्यूज बढ़ रहे हैं. व्यूज बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका अकाउंट, आपका ट्यूटोरियल रीच बढ़ रही है. एंड सूनर एंड लेटर, जब आपका कंटेंट जितना रिफाइन होता रहेगा, जितना बेटर होता रहेगा, आपके लाइक्स उतने आते रहेंगे. करेक्ट. अब देयर विल बी अ कंफ्यूजन, किस टाइप का कंटेंट बनाए. ऑब्वियसली नाउ थिंक एज अ लेमैन मैन. ऐसा इंसान की तरह सोचो जिसको मेकअप नहीं आता. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफिस जाते हैं, देयर आर सो मेनी गर्ल्स, दे वांट टू लर्न डेली मेकअप लुक, कि कैसे ऑफिस लुक क्रिएट करे. एक काजल लाइनर लगा लगा के सब बोर हो चुके हैं, एवरीबडी इज बोर्ड अपने सिंपल मेकअप कर करके. सो दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू, कि कुछ डिफरेंट किया जाए. क्रिएट 5 minutes look. How to get ready in 10 minutes. How to get ready in 5 minutes. एक ही प्रोडक्ट से कैसे हम अपना पूरा बेस मेकअप कर सकते हैं. हाउ वी कैन क्रिएट अ फुल मेकअप लुक विद 2 things. इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करो, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स ऐसे बनाओ. किसी दिन कॉन्टेंट्स अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बना लिया, कि हाउ टू बाय मेकअप अंडर 1000 rupees, 2000 rupees. डिफरेंट डिफरेंट करो चीजें कंटेंट के अंदर. कंटेंट के लिए अपनी डायरी मेंटेन करो. लिखो कि आज मैंने ये हफ्ते में ये कंटेंट क्रिएट करना है, सेकेंड वीक में ये कंटेंट क्रिएट करना है. ऑलराइट, ये सब आप अगर रेगुलर करते रहोगे, आई एम टेलिंग यू, देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट दिखेगी. आपके एल्गोरिथम, आपका इंस्टाग्राम, आपकी रीच बढ़ती रहेगी. राइट हैशटैग्स यूज करते रहो. रीशेयर. नाउ यू हैव फ्रेंड्स, हम सबके फ्रेंड्स होते हैं. टेल देम टू रीशेयर योर कंटेंट. आप अपनी स्टोरी में डाल रहे हो कि न्यू रील, चेक आउट माय न्यू रील, तो आस्क योर फ्रेंड्स कि शेयर इट ऑन देयर फीड आल्सो. उनको भी सेंड करो, उनको भी बोलो कि वो भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करे. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट मेकअप. कंटेंट आपने फिगर आउट करना है कि क्या क्या बनाना है. मैंने आपको बहुत स्मॉल एग्जांपल्स दिए. आई कैन गिव यू नंबर ऑफ एग्जांपल्स. मेरे पास खुद बहुत सारा भी कंटेंट अपने लिए माइंड में है. राइट नाउ आई एम नॉट पोस्टिंग देम ऑल. व्हाई? क्योंकि मेरा एम फिलहाल मेकअप ब्यूटी ब्लॉगर नहीं है. माय एम इज टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, एन एजुकेटर. तो या मेरे रील्स होते हैं एजुकेशन की तरफ, मेकअप एजुकेशन की तरफ, या मेरे रील्स होते हैं अबाउट माय क्लाइंट्स.
सो अगर आप एक ब्यूटी ब्लॉगर बनना चाहते हो तो यू कैन पोस्ट एवरीथिंग अबाउट मेकअप, ए से लेकर जी तक, जितना मेकअप के बारे में पता है, जितना प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, आप कैसे उसको यूज करते हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डोज एंड डोंट्स, सब कुछ बनाओ. बट if you want to be a freelancer wedding makeup artist, you need to keep in mind कि only self makeup won't work, because वो आपके client, मतलब वो आपकी जो niche है उसको confuse करेगा. So you have to first figure out your niche. आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए. You should know your audience, understand your audience कि कौन है. अपने ऑडियंस को अगर ये लगेगा कि आप एक ब्यूटी ब्लॉगर हो तो वो आपको ब्यूटी ब्लॉगर की तरह दिखेंगे. They won't contact you for work. आपकी ऑडियंस को पता होनी चाहिए कि यस शी इज मेकिंग रील्स, एजुकेट कर रही है वो मेकअप के बारे में, पर साथ साथ शी इज ऑल्सो टेकिंग क्लाइंट्स. अब बडिंग आर्टिस्ट को क्लाइंट्स मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो इट वेरी वेल. तो क्या करना चाहिए इन दैट केस? देखो, एज अ बडिंग आर्टिस्ट आपको भी दो चीजों का ध्यान रखना है. यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट फेसेस एंड यू नीड टू पोस्ट दोस पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड लिंक्डइन. ठीक है, उसके लिए यू नीड टू टेक योर फ्रेंड्स, टेक योर सिस्टर्स, आस्क योर मॉम, इन सबको पकड़ो, इन पे मेकअप करो, मेकअप करते करते रील बनाओ. मैंने अभी आपको ट्यूटोरियल बताया था ना कि ट्यूटोरियल्स बनाओ. तो क्या करो कि जब आप किसी का मेकअप कर रहे हो, अपने फोन को हैंग कर दो अपने रिंग लाइट पे. ठीक है, जब जब आप जो जो स्टेप कर रहे हो वो स्टेप को रिकॉर्ड करो कि आपने ये जो मेकअप लुक क्रिएट करा है वो कैसे किया. शॉर्ट क्लिपिंग्स बनाओ. बाद में वही शॉर्ट क्लिपिंग्स का आपका एक रील बन जाएगी. एक पिक्चर भी निकल आएगी कि ये मेरा क्लाइंट है, इस पे मैंने मेकअप किया है, और आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन रील भी बन जाएगी, क्योंकि आजकल सारे क्लाइंट सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रील्स बनवा ही रहे हैं. तो आपके एक ही दिन में 3 कंटेंट तो ऐसे ही आ गए. एक कंटेंट जिसमें आपने मेकअप का पूरा प्रोसीजर दिखा दिया कि आपने मेकअप कैसे किया है. सेकंड कंटेंट आपका ये आ गया कि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन रील बना दी बिफोर एंड आफ्टर की. थर्ड, कोई भी फनी रील बना दो, एनी रील. आप देखते हो आजकल बहुत कुछ ट्रेंड पे चल रहा है, फॉलो करो, अंडरस्टैंड आजकल ट्रेंड में चल क्या रहा है. इंस्टाग्राम पे आधा घंटा सिर्फ रैंडमली एक्सप्लोर नहीं करना, रैंडमली अपने स्क्रॉल नहीं करना. आधा घंटा समझने में लगाओ कि अच्छा ये वाले जो ऑडियोज हैं ये ज्यादातर रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स दिस ऑडियो इज राइट नाउ इन दी ट्रेंडिंग पोजिशन. ये ट्रेंड हो रहा है ऑडियो, इसलिए बार बार आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है. सेव दैट ऑडियो. ट्रेंड में और चेक करो कि क्या चल रहा है, किस टाइप की फनी रील चल रही है, फनी चल रही है, सीरियस चल रही है, क्या चल रहा है. उस ट्रेंड को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, इन्फ्लुएंस हो उस चीज से. नए आइडियाज आते हैं. इन्फ्लुएंस होना इज नॉट बैड. आप इन्फ्लुएंस करोगे एंड उसके बाद आपको समझ आएगा कि अच्छा इसमें मैं अपना हिंट डालू, अपना काम डालूंगी ना तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो आपके कैसे एक ही बंदे की वजह से, एक ही मॉडल या एक सिस्टर या ब्रदर, आई मीन इवन मेल, व्हाई नॉट, आप मेल मेकअप भी तो कर सकते हो. मॉडल्स भी तो होते हैं ना, मेल मॉडल्स होते हैं नहीं होते. तो मेल मॉडल्स भी, भाई को भी पकड़ लो अपने कि बिफोर आफ्टर कर लो, मेल मॉडल्स कर लो आप अपने. सब राइट नाउ देयर इज नॉट ओनली वेडिंग, इट्स अबाउट, आजकल कितना कुछ चल रहा है फैशन में भी. ठीक है, आप जाके कितने सारे बुटीक्स है, यू कैन सी देयर आर सो मेनी फैशन डिजाइनर्स, देयर सो मेनी जूलर्स आउट देयर. थोड़े बडिंग फैशन डिजाइनर्स भी होते हैं, उनको कांटेक्ट करो. कैसे कनेक्ट करोगे? एक अच्छा सा मैसेज बनाओ. Make a good draft, a good message in which you will write that you are a makeup artist, you are a freelancer makeup artist, and you would love to work with them. अपना contact number भी लिखो and ask them to check out your profile. Decent सा एक मैसेज करो, copy paste करके try to paste it on those fashion designers pages or those models or bloggers, or you can say different jewelers. There are so many jewelry outlets there, तो उनको भी post करो. जितना दिख रहा है आपको. फोटोग्राफर्स, उनको भी भेजो. कभी कभी फोटोग्राफर्स के पास भी अपने अपने क्लाइंट्स आते हैं, दे वांट अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर देयर वेडिंग पोर्टफोलियो, और दे वांट इट फॉर देयर व्हाट डू वी से दैट प्री वेडिंग. तो इन सबको कनेक्ट करो. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्स वेडिंग इवेंट प्लानर्स. इवेंट प्लानर्स को भी कनेक्ट आपका करना. यू नीड टू फाइंड देयर नंबर्स, गूगल देम, फोन नंबर एंड कॉल देम. देखो, अपने काम के लिए ना खुद ही करना पड़ता है, खुद ही कॉल करना पड़ेगा.
Tell them you're a makeup artist. ठीक है? Share your pictures with them on WhatsApp or on email, whatever suits you. And tell them, ask them, do you connect makeup artists with your clients? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? They will take commission. या maybe they won't take commission. हर का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का. So it's okay. इनिशियल डेज में क्या चाहिए? काम ही चाहिए ना. मेन हमारा फोकस होता है काम. तो इनिशियल डेज में कनेक्ट करो उनको, फोन करो उनको और उनको बोलो कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है उनको रेफर करे, आपको रेफर करे. So basically what you have to do, find their contact details on Google, find your आपका जो भी एरिया है, आसपास एरिया के इवेंट मैनेजर्स को कॉल कर लो, उनको बताओ कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो, and if you like I can connect with you, you can connect me with your client. ठीक है? तो कभी कभी उनके पास क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास जो इतना ज्यादा मेकअप में नहीं होते, then they are okay with it, so they can help you out. वो आपको कनेक्ट करा देते हैं क्लाइंट से. ठीक है? तो आपका वहां से भी क्लाइंट आ सकता है इवेंट मैनेजर्स के साथ. इंस्टाग्राम को कैसे अपना हैंडल करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी ऑन टॉप. आपको कंटेंट अच्छे क्रिएट करने हैं. इनिशियली आपको अपना पेज को अट्रैक्टिव बनाना है. अपने पेज पे अगर आप इफ यू आर फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट, यू नीड टू मेक श्योर दैट आपके फीड पे सिर्फ सेल्फ मेकअप ना हो, डिफरेंट फेसेस भी हो, so that the client who is coming to your page should be confident on you. You should be confident about your work. कि ठीक है, इसने बहुत सारे लोगों पे काम करा है, डिसेंट लोगों ने किया, मैं नहीं कह रही 100 या 50, बट हाँ 15 लोगों पे काम दिख रहा है, अच्छा लग रहा है. So ठीक है, fine. I can book her for my party makeup, for my engagement day, for my roka day, for my wedding day. So initially invest in yourself. देखो initially what you have to do, you have to put money in your work. आपको स्टार्टिंग में, मुझे पता है, ये इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और धीरे धीरे उसका रिजल्ट आता है. पर जब रिजल्ट आना शुरू होता है ना, वो सब कवर कर देता है. So you initially have to put your efforts and your money. Both, everything, सब कुछ करना पड़ता है जितना आप कर सकते हो, obviously जितना आप कंफर्टेबल हो करने में. This was all about Instagram, okay? But be sure you have to be patient. अगर आप सोच रहे हो आपका 6 महीने में बहुत एकदम से फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, नहीं होता है. हर किसी का लक नहीं होता. there are people out there जिनका within 6-7 months एकदम से किसी एक रील के वजह से भी बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े, just because of one reel. So अगर आपके साथ ये हुआ तो डोंट बी डिसहार्टेंड. होगा, सबका टाइम आता है अपने सही टाइम पे, बट बी कंसिस्टेंट, एफर्ट डालते रहो. यू नेवर नो आपका टाइम कब आएगा. ठीक है? डिमोरलाइज मत हो. बहुत लोग होंगे डिमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत लोग कर देते हैं, बट आपको नहीं पता आपके लिए कौन सा दिन लिखा है. सो बी कंसिस्टेंट. ओके? नाउ सेकेंड थिंग, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं रहना. डोंट बी inside a wall of Instagram. Go and break the wall of Instagram. आगे भी जाओ. Now come to Google. Register. Google business पे register करो अपना नाम. Register करो that you are a makeup artist. So that Instagram के बाद अगर आपको कोई Google करे तो आपका नाम आना चाहिए Google पे. Tell your friends to give good reviews on Google page. Send करो अपने Google links अपने near and dear ones को. Tell them to give you good ratings, give good comments. देखो अपने लिए ये करना पड़ेगा. गूगल पे अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज हमारी सबकी आदत है कि गूगल पे चले जाना. एंड स्पेसिफिकली जो हमारे एज से बड़े हैं, गूगल पे यू हैव टू फाइंड गूगल बिजनेस, डाउनलोड दैट ऐप, एंड उसके बाद अपने आप फिगर आउट करो कि कैसे एनरोल करना है. Now this was Google and this was Instagram. Then comes Facebook. Now I know Facebook पे अभी भी बहुत लोग एक्टिव नहीं है, but बहुत ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जो Facebook पे ज्यादा एक्टिव हैं. Those are our sisters, elder sister, or maybe our parents. वो अभी भी Facebook पे बहुत comfortable है. So you should have a page on Facebook also. Make a makeup page of your name on Facebook also. ठीक है? Now after going on Facebook, you should post pictures over there also. जैसे आप Instagram पे डाल रहे हो, same time पे अपने Facebook पे भी pictures डालो. Because आपको क्या पता, आपके Facebook पे ज्यादा friends होते हैं, right? Because we are on Facebook since so many years, I don't even remember. तो obviously initial days पे हमारे followers Facebook पे ज्यादा rather than Instagram पे.
तो फेसबुक पे अपने अकाउंट में पिक्चर स्टोरीज पे डालना शुरू कर दो, ताकि आपके फेसबुक फ्रेंड्स को पता चले दैट यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट नाउ एंड दिस इज योर वर्क। मे बी आपको फेसबुक से क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाए। नाउ आफ्टर फेसबुक कम ऑन यूट्यूब, अपलोड योर कंटेंट, सेम कंटेंट जो भी आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो उसी कंटेंट को आप अपने यूट्यूब पे डालो। ओके, it's not, see YouTube पे भी लोग, there are people who are running their business on YouTube. I have seen so many good artists, international artists जो सिर्फ YouTube पे content release कर करके they are on the top level as a beauty blogger. So it's no harm, अपने आप को YouTube पे भी जाओ, उसपे भी आपने पोस्ट करो अपने कंटेंट को ना। YouTube पे भी अपने ट्यूटोरियल्स डालो, सिंपल ट्यूटोरियल्स डालो, इजी मेकअप डालो, इजी मेकअप हैक्स डालो, वेडिंग ट्यूटोरियल डालो। सो जैसा कंटेंट बनाया उस हिसाब से उसमें कैप्शन डालो, और ऐसे कैप्शन डालो जो आप डालते हो अपने सीखने के लिए। जब आप YouTube पे जाते हो, यू ट्राई टू गो एंड लर्न समथिंग ऑन YouTube, तो ऐसे ही कैप्शन जनरेट करो जो आप एज अ क्लाइंट सर्च करोगे। ठीक है ना। दिस वाज यूट्यूब पे कोई बहुत डीप डेप्थ नॉलेज नहीं है, इट्स जस्ट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब एंड स्लोली सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे एंड पीपल विल कम टू नो अबाउट यू। तो जितने भी पेजेस हैं वेड मी गुड, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट, इफ योर क्लाइंट्स आर नॉट कंफर्टेबल ऑन पोस्टिंग देयर पिक्चर्स इज अ डिफरेंट थिंग। सो देयर विल बी क्लाइंट्स जो आपको मना कर देंगे, इनिशियली कहेंगे ठीक है एंड बाद में कहेंगे, रिफ्यूज कर देंगे कि नहीं मत डालो। सो इट्स ओके, यू शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज यू कांट फोर्स, आफ्टर ऑल वो उनकी पिक्चर है, वो आपकी पिक्चर नहीं है। सो यू कांट फोर्स देम, यू कैन एक्सप्लेन देम, पोलाइटली बात करो। देखो पोलाइटली और काइंडनेस से ही काम निकल सकता है, ईगो से या लाउड होके या इरिटेटेड होकर अगर आप किसी को बोलोगे तो आपको कोई काम भी नहीं रहेगा, रादर आपका बैड वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा। सो जितना पोलाइट रह सकते हो ना, आई नो इट टेक्स स्ट्रेंथ, देयर आर सम पीपल आउट देयर जो आपके साथ नहीं होंगे इतने पोलाइट, बट यू बी पोलाइट बिकॉज वो आपकी एक अच्छा रिमार्क, एक अच्छा रिव्यू जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन लेटर ऑन विल थिंक दैट दिस आई वाज रूड टू हर बट शी वाज सो काइंड इनफ दैट शी डिडंट रिप्लाई मी इन अ बैड वे। तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ हो गया, वो आगे जाके शायद आपको रेफर ही कर देगा कि हाँ इसका काम अच्छा है एंड शी वाज वेरी नाइस, वेरी प्रोफेशनल। So word of mouth is very, very important. You have to keep your behavior in check absolutely all the time. Now it comes to Facebook, YouTube and Instagram. So these are the places where socially you can connect with people. जब आपको website, इन सब जगह से आप online famous हो सकते हो। Not what about places around, जो आपके आसपास जगह है, आप उधर भी अपने आप को कैसे पब्लिसाइज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आई कार्ड, अपने कार्ड्स बनवाओ, विजिटिंग कार्ड, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं ना, किसी के बिजनेस में हम जाते हैं या हम किसी के शॉप पे जाते हैं तो उनके कार्ड्स होते हैं, प्रोफेशनल कार्ड्स होते हैं। सो ट्राई उसको आप अपने बनवाओ, सो दैट आप किसी भी ब्यूटी, जैसे प्रिटी कॉस्मोस हो गया फॉर एग्जाम्पल, या आपके घर के पास कोई लोकल शॉप है जो कॉस्मेटिक सेल करते हैं, ऐसे ऐसे जगह पे जाओ जो मेकअप से रिलेटेड हो, जहां लोग मेकअप खरीदने आते हैं, उनको अपना कार्ड दो, टेल देम यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको लगता है उसकी शादी, मतलब यू नो उनकी वेडिंग होने वाली है या उनके घर पे कोई फंक्शन है, तो प्लीज रेफर इट। जब आप बिलिंग करते हो तो आप प्लीज मेरा कार्ड दे दो और उनको रेफर कर देना एंड इट्स ओके, वी कैन टेक कमीशन, आप मुझसे कमीशन चार्ज कर लेना। बिकॉज देखो अगर आप ये वर्ड बोलोगे ना कमीशन, ऑटोमेटिकली इसका इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, यू एंड शी विल बी लाइक ओके व्हाई नॉट, मेरा भी बिजनेस हो रहा है इससे, तो ठीक है व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो ऐसे अपने कार्ड सही जगह पे गो एंड गिव इट। अपने एरिया पे, इफ यू लिव इन अ सोसाइटी, ट्राई टू मेक अ पैम्फलेट, पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, सो दैट पीपल नियर यू, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, वो भी जान सके कि हमारे यहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट है, लेट्स ट्राई इट। ठीक है, सो ऐसे पब्लिसिटी अपनी करनी है कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, अपने आसपास पेपर वर्क से भी कर सकते हो आप अपनी पब्लिसिटी। और नियर बाय सैलून में जाके भी बात कर सकते हो कि यू नो यू कैन गिव अ कार्ड और यू कैन कॉल मी, आप मुझे बुला लेना अगर आपके यहाँ पर कोई अच्छा नाइस क्लाइंट आता है, तो वी कैन यू नो वर्क ऑन कमीशन बेसिस। अच्छा, देन सेकंड थिंग आई टोल्ड यू, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट इंस्टाग्राम, मैंने आपको बताया था कि पेजेस को कांटेक्ट करो कि यू नो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर लेना। सो यस, दिस इज कोलैबोरेशन सिस्टम।
There will be people out there जो collabs करना ही चाहेंगे initially क्योंकि वो चाहते हैं फ्री में उनका काम मिल जाए, and it's sometimes it's not bad to be very honest. अगर आप देखो, आप किसी को अपने घर बुलाते हो, एक मॉडल, आजकल इंस्टाग्राम मॉडल आपने सुना होगा, क्या है कि ये वर्ड कुछ नहीं है, आजकल से जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो जब उनके पास वेडिंग डेज होते हैं, जैसे ये डेज है, अभी इस टाइम ऑफ सीजन है, सो व्हाट दे डू, या तो वो मास्टर क्लासेस लेते हैं या वो कंटेंट क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं. सो वो जो लोग जिन पे वो मेकअप करते हैं, वी कॉल देम मॉडल्स, राइट? तो ट्राई टू सर्च मॉडल्स जो आपकी रेट बजट फ्रेंडली हो या फिर जो कोलैब पे काम करना चाहे, ठीक है? उन मॉडल्स को बुलाओ, उन पे काम करो और उनके साथ रील अच्छे अच्छे बनाओ एंड पोस्ट करो. अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा हो गया, सो आप कोशिश करो कि ऐसे इन लोगों के पास जाओ जिनको मेकअप, जिनको शूट कराना ही कराना है, लाइक ज्वेलरी प्लेसेस पे जाओ, ऐसे ब्रांड्स के पास जाओ जिनका ज्वेलरी का काम है या जिनका कॉस्मेटिक का काम है या जिनका क्लोथिंग का काम है, जिनको शूट कराना ही कराना है अपने पर्पस के लिए. तो आप ये सोचो, चाहे दे आर नॉट पेइंग यू, but in return you are getting a free good quality picture and you're not even giving money for that model and that photographer. ना आपके फोटोग्राफर के पैसे खर्च हो रहे हैं ना मॉडल के पैसे खर्च हो रहे हैं, इन रिटर्न आपको एक अच्छी पिक्चर मिल रही है. तो इनिशियल डेज पे ना अगर ये सब करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, करो, because right now you need work, you need to show other people that yes you have different kind of faces to work on and be confident. कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है. देखो, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट. आप जब इंटरव्यू पे जाते हो, इंटरव्यूअर क्या देखता है, आपसे क्वेश्चंस पूछता है और आपका चेक करता है आप कितने कॉन्फिडेंट स्पीकर हो. सो यू शुड क्रिएट एन ऑरा. इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, इनसाइट क्या होता है, व्हाट इज इनसाइट? आई टोल्ड यू द वर्ड एल्गोरिथम, इट्स ऑल अबाउट इंस्टाग्राम इनसाइट. इंस्टाग्राम इनसाइट मतलब वो आपका पेज के बारे में बता रहा है, इट्स डिपिक्टिंग योर वर्क. बूस्ट करना चाहिए. नाउ अभी भी मैं देखती हूँ मेरे पेज पे, you know, when I was as a bride, I took a good makeup artist for my makeup, for my wedding makeup, and you know how I found her. मुझे पता कैसे चला था कि ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, through a reel, and that too वो पोस्ट जो थी उनकी वो बूस्ट हुई थी. तो बूस्ट होने की वजह से ही मेरे पास वो रील आई, वो पिक्चर इनफैक्ट आई, जिसकी वजह से मुझे उनका काम दिखा. मैं उनके पेज पे गई, मैंने देखा बहुत अच्छा काम है. दो एट दैट टाइम दे वर नॉट इवन दैट पॉपुलर, बट बिकॉज ऑफ दैट बूस्ट मुझे उनके बारे में पता चला. एंड देयर सो मेनी थिंग्स, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जिनकी काम बूस्ट की वजह से बहुत लोगों के पास रीच जा रही है. सो यस, इट्स अ गुड थिंग, आप बूस्ट करो. सो रील बूस्ट इतना इजीली नहीं होता, बट आपकी स्टोरी बूस्ट हो जाती है या फिर आपकी पोस्ट जो आप पिक्चर्स डालते हो वो बूस्ट हो जाती है. तो अपनी स्टोरीज पे बूस्ट करो, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, हम स्टोरीज को देखने में इतने हैबिचुअल है कि हमारे पास आ जाती है, कोई ना कोई मेरे पास भी आए दिन आती रहती है बूस्ट हुई हुई स्टोरी. सो डू दैट. ओके, सो बूस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग आई वुड से. एट टाइम्स नहीं वर्कआउट होता, but that doesn't mean कि कभी भी नहीं होगा. कभी कभी बूस्ट की वजह से इतना कुछ नहीं आता, एक बार बूस्ट किया कभी कभी वो रिजल्ट नहीं आता, बट थोड़े बीच बीच में करते रहो, इट विल वर्क फॉर श्योर. Okay. And don't forget to be live. Connect with your audience. If you're on Instagram specifically, come on, take live sessions. कोई बात नहीं, 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, इट्स ओके, बट आप उनके साथ इंटरैक्ट करोगे, आपका इंस्टाग्राम भी वर्क वैसे करेगा. जितने लोगों के आप पोस्ट पे कमेंट करोगे उतने लोग आपके बारे में जानेंगे. इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना सीखो, सिर्फ टाइम पास करना, एक्टिव करो, लोगों के पोस्ट पे कमेंट करो, ताकि लोग जो ऐसे ऐसे और कमेंट करें, लाइक करें, दे कैन आल्सो रीड योर नेम कि अच्छा ये भी कोई आर्टिस्ट है, ये भी कमेंट करे, एक बार देख लेता हूँ या देख लेती, राइट? और लाइव सेशंस लिया करो ताकि जो आपके कुछ फॉलोअर्स है वो आया करे, धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं, फॉलोअर्स व्यूअर्स बढ़ते रहते हैं, देन स्टार्ट लाइकिंग योर, दे स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइव सेशंस. सो दैट these are the small things which you need to take care about.
Sorry, you were speaking something. No. I wasn't saying anything. I was just wanting you to take a 30-second break because you've been speaking itna अच्छा cheeze for almost an hour. So I want you to go ahead and take a 30-second break. I just quickly wanted to check in with all of our ladies. I hope everything is understood. I hope language का कोई issues नहीं है, and I hope सब लोग notes बना रहे हैं. Are you all liking this session thus far? Let me know. Yes. Kushbu says she is so sweet. Yes, of course, we absolutely agree. Are you liking this session? Are you finding any difficulty regarding the language or the pace? Yes, no, maybe, let us know. Okay, perfect. Thank you so much. I guess all of these folks are your fans, Achal, at this point. Thank you so much for letting us know, and we can move forward now. Yes. Yes. So right now, I have told you so many things, but yes, as our host is right, we tend to forget to do those things. हम भूल जाते हैं या हमें आलस भी आ जाता है. See, these are the things which even I feel sometimes. I feel lazy about doing it. But there are people around me who boost me up. मुझे boost करते रहते हैं. नहीं, do it. आज क्यों नहीं किया कुछ? So talk about your work, motivate yourself. कभी कभी डीमोटिवेशन होती है, कोई बात नहीं, होती है, सबके साथ होती है. कोई भी काम में होता है, हर काम आसान नहीं होता, हर काम में मुश्किलें आती हैं. So you need to face it up. You need to work it out. You need to be consistent. Consistency is the key. I'm telling you, that is the key for sure. There was a time. Now let's talk about Air Black. How आप लोग Air Black पे land up कैसे हुए? Because of Instagram, right? Yeah. Instagram से आपने अच्छे influencers को देखा that they are on Air Black. They're talking about Air Black, right? They are doing so good. They are talking so good. अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे reviews आ रहे हैं. तो आपको confidence आया, आप यहाँ आए, and now you're a student over here. So आपको भी वैसे ही अपना काम करना है. आपको भी कभी-कभी अपने friends को बोलो कि clippings बना दे, थोड़ी अच्छी मेरी compliment about my work, compliment about my things. ठीक है? So posted that ताकि जो आपके followers को भी boost up हो, वो भी confident हो आपके काम के बारे में. एंड मार्केटिंग भी ऐसी होगी साथ साथ आपकी वर्बल मार्केटिंग भी होगी. वर्ड ऑफ माउथ की वजह से कितनी अच्छी मार्केटिंग होगी. एज अ एयर ब्लैक आल्सो it's such a you guys are very lucky that you are on this platform because you are not only learning from one makeup artist but I think multiple very like great known faces. Yeah. Those people are sharing work with you. I mean इतना easy नहीं होता था पहले. Initially being a makeup artist, in fact, I used to be, as a student, when I was a teacher, I used to think, it's such an expensive thing. I don't know, I should go for it or not. I was a makeup artist lover. I was a makeup lover, but there was something which was holding me. Why? Because at that time, it was Instagram, and everything was not so famous. ठीक है, मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था. मैंने कभी कुछ मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि मैं अपना मेकअप कहाँ से सीख सकती हूँ. Now you have a place where you can learn makeup through different people. In fact, people are here who are teaching you how to create content. So you're getting so many things on one plate. Literally, it's a platter. So जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ, जितना learn कर सकते हो learn करो. And be active. Learn something from each and every person. किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कोई strength होता है, किसी का tutorial देखो, किसी के sessions देखो, किसी को YouTube पे देखो. लर्न करो वैसे. एनहांस योर स्किल. अपने स्किल्स को ना एक जगह सेट मत करो कि बस मैंने सीख लिया, मैं पॉपुलर भी होने लगी हूँ, मेरे पास अच्छा खासा काम आ रहा है और मैं यहाँ तक खत्म. बस ये नहीं होता. यहाँ लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए स्किल्स में. स्किल्स आपके स्किल सेट को एनहांस नहीं करोगे तो मार्केट में आप एक जगह आके स्टॉप हो जाओगे. राइट? देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू यूज नोकिया फोन. नोकिया वाज सच अ बिग थिंग, बट आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल कि वो आगे तक नहीं उन्होंने अपने एनहांस किया. उन्होंने आगे अपने आप को नहीं कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन में रहे, इसी वजह से वो आउटडेटेड हो गए. सो डोंट बी आउटडेटेड. एनहांस योर स्किल. टेक क्लासेस लो. हर आर्टिस्ट से क्लासेस लो. इट्स अ गुड थिंग. आपने एक ही बार मेंबरशिप ले ली और उधर से आप अपनी क्लासेस ले रहे हो. डिफरेंट आर्टिस्ट से सीख रहे हो. आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो. 2 चीजें सीख रहे हो, 3 चीजें. क्योंकि मैं कई बार पढ़ती हूँ, लोग कहते हैं ये तो हमें आता ही था. How is that possible? हर एक आर्टिस्ट का डिफरेंट वर्क तरीका होता है. एक लाइनर लगाने का भी तरीका अलग होता है. एंड कभी कभी
हम में एक स्टैंडर्ड तरीके से वो काम नहीं होता, पर हम दूसरे का काम देख के हम समझ जाते हैं अच्छा ये तरीका फॉलो करते हैं, मे बी इट वर्क्स फॉर मी, एंड इट हैपेंस विद मी एज वेल. At times I struggle out with something. I watches so many different tutorials. Venki classes, आज तक being a member, I take classes through Air Black. जब मुझे sessions मिलते हैं मैं attend कर लेती हूँ. Because at least I'm learning, I'm getting to know so many things about makeup from a different person, from a different perspective. So it's just be active. That's what I want to say. आपको in any case active होना चाहिए. और एक्टिव रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो अपने आप समझ आता रहेगा कि क्या है ये. Yes. Okay. So yes, actually, you have been explaining, I think, each and every aspect of social media wonderfully. I got a lot of compliments for you in the chat box as well. So yes, with that being said, there have been a lot of particular questions in the chat box. Let us know whenever you feel comfortable in answering them. Is there anything left from your end? Yeah, I'm done from my end. Now we can talk about it. All right, perfect. So yes, folks, I have been keeping a note of your particular questions. I hope everybody is up to pace with us and everybody has been understanding. So we will quickly get the questions answered for the next half an hour today. So for the first question is, can we use Pinterest? Pinterest for what? For taking pictures and posting it? Don't do that, please. मत करो. Because let me tell you, अगर आपने suppose एक Pinterest से picture उठा ली, that's, और आपने client को बताया कि ये मेरा काम है, और आपका वो काम वैसा हुआ नहीं, अगर client ने बोला आप यही मेकअप करो मेरे ऊपर, और वो रिजल्ट भी नहीं आया, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं होता. सेम किसी का आप कॉपी पेस्ट कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी परफेक्शन के साथ कर लो, वो नहीं आता. देन यू विल बी एट, आप ऐसे पोजीशन में आ जाओगे, खुद ही एम्बैरेस हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने तो वो काम ही नहीं किया था, तो मुझे तो आता ही नहीं इतना ढंग से करना. So don't ever take pictures from some other site and post it as your work. All right, मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हम गुड क्वालिटी पिक्चर्स भी पोस्ट करते हैं, हम अच्छी खासी प्रोफाइल भी बनाते हैं, उसके बाद भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ते. सो इफ as a blanket statement, if you can go ahead, let us know the difference between followers and getting an engagement. That would be amazing. Yes, absolutely. See, followers and engagement is, these are two different things. As followers क्या होते हैं, जो आपके इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं और नंबर्स बढ़ रहे हैं. एंगेजमेंट क्या होती है कि आपके फॉलोअर्स के अलावा जितने लोग हैं इंस्टाग्राम पे वो भी आपका काम देख रहे हैं. So according to me, they both hold importance. Followers की भी importance होती है and engagement की भी importance होती है. But एक टाइम बाद engagement की importance हमेशा ज्यादा हो जाती है. क्यों? क्योंकि वही engagement अगर बढ़ती रहेगी, उसी engagement यानी कि आपके अगर कोई पोस्ट है, कोई रील है, अगर उस रील को बहुत सारे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं दूसरे को, जैसे हम यूजुअली करते हैं, या बहुत सारे 1-2 लोग हैं, 6-7 लोग हैं जो उसको सेव कर रहे हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या सिर्फ देख भी रहे हैं, सो इट्स अ बिग थिंग. क्योंकि वो जो आपकी रीच जा रही है, एंगेजमेंट लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसी एंगेजमेंट की वजह से ही आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. सो जस्ट इमेजिन आपके अभी 100 फॉलोअर्स हैं, रीच आपकी होगी 700. ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, जो स्टार्टिंग में यही रीच रहती है. तो वो 700 में से 3 या 2 फॉलोअर्स तो आपके अपने आप आ जाएंगे, जिनको आपका काम अच्छा लगेगा, जो आप सोचेंगे चलो लेट मी फॉलो दिस पर्सन, और जिसके वजह से आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे. सो फॉलोअर्स पे स्टिक मत रहो. मोटिवेशन से फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए. एंगेजमेंट सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही आ सकती है. कंसिस्टेंट यूजेज ऑफ करेक्ट हैशटैग्स, यूजेज ऑफ करेक्ट ऑडियो. तो ऑडियो जो ट्रेंडिंग में हो वो यूज करो, हैशटैग जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो वो यूज करो. उसी वजह से आपका एंगेजमेंट बढ़ेगी. एंगेजमेंट बढ़ेगी तो ही आपके फॉलोअर्स साथ साथ इंक्रीज होंगे. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. Thank you so much. Can we upload our pictures on Pinterest? Is that an option to do it? See, I have not used Pinterest to upload my work, but if it is possible, because I haven't done it yet, so if you can do it, if you think it is possible to do it, because that's not a problem. मैं कह रही हूँ शादी वेश, वेट बी गुड, बहुत सारे जितने भी वेडिंग रिलेटेड है सब जगह एनरोल कर लो, कोई बात नहीं. काम आ ना आ रहा हो या वहां से अभी तक रिस्पॉन्स आए ना आए,
पर कोई अगर आपको गूगल करेगा तो देखेगा आप कितनी सारी जगहों पे enlisted हो, which creates a good positive image about your work. So do it. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, अगर हमारे 2 या 3 से ज्यादा चीजें हैं सोशल मीडिया में, जैसे यूट्यूबर, ब्लॉगर, मेकअप आर्टिस्ट, ट्रैवलर, सो शुड बी पुट ऑल ऑफ दैट इन आवर बायो? Okay, no, because वो आपके ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहा है. ठीक है, अब आई एम टेलिंग यू कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं मेरा जो मेन आइडिया है, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट माय पर्टिकुलर ग्राम, that my idea is to promote myself as a makeup educator and a freelancer makeup artist. तो मेरी जो रील और जो पोस्ट होते हैं, मतलब क्लाइंट्स के और जो मेरे खुद के रील्स में ना एक रेशियो होता है. माय रेशियो इज नेवर इक्वल. मेरी कोशिश होती है कि मेरे क्लाइंट ज्यादा नजर आए, एंड देन देयर आर डेज व्हेन मैं आई अपलोड माय रील्स ताकि मेरी रीच भी बढ़ती रहे. सो डोंट कंफ्यूज योर नीश. अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज मत करो. देयर आर पीपल आउट देयर नाउ. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो बहुत सारे देयर आर ब्लॉगर्स, बहुत सारे ब्लॉगर्स है जिनकी रीच, जिनके फॉलोअर्स अब 13K, 14K, 15K पहुंच गए. नाउ दे कैन कंफ्यूज देयर ऑडियंस बिकॉज उनकी ऑडियंस को पता लग चुका है कि हाँ ये ब्यूटी ब्लॉगर है, बट साथ साथ वो अपने ना ट्रैवलिंग के भी पोस्ट डाल रहे हैं, ट्रैवलिंग के पिक्चर्स और वीडियोस भी डाल रहे हैं. सो इट्स ओके फॉर देम टू डू इट, बट इनिशियली स्टेज पे अभी डोंट डू दैट. वर्क रिलेटेड प्रोफाइल रखो. पर्सनल रिलेटेड प्रोफाइल बनाना है तो उसको अलग बनाओ, और पर्सनल रिलेटेड वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे डाल दो, दैट्स फाइन, but don't do it on Instagram. That will confuse your audience. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, इंस्टा पे फुल पिक्चर अपलोड नहीं होती तो किस पे एडिट करके डालूं? See, Instagram पे ना full picture upload नहीं होती, that's fine and it's totally fine. Why? Because Instagram पे अगर आपको makeup picture डालना है तो यहाँ तक ही डालना चाहिए. पूरी लेंथ में डाल लो, बाद में डाल लो, नेक्स्ट पोस्ट में डाल लो जिसमें इतना आ रहा है. कोशिश करो यहाँ वाली पिक्चर ज्यादा है, एज बिकॉज यू नीड टू शो द फेस ऑफ द पर्सन. मेकअप दिखना चाहिए, ड्रेस डजंट मैटर ना. ठीक है. एंड अगर आपको एज आई टोल्ड यू, देयर वाज एन ऐप B612. इन दैट ऐप देयर इज एन ऑप्शन बैकग्राउंड. उस पे जाके आपकी पिक्चर जो है एक बैकग्राउंड पे स्टिक हो जाएगी, जिसकी वजह से फुल लेंथ पिक्चर की दिखेगी. So I really like B612 application. Go and download it. Okay, so do you recommend B612 as a professional app for editing as well? आपको क्या edit करना है? It depends. If you just want to edit a picture, it's good enough, it's decent enough. But if you're talking about videos, no. वो app is just related to pictures, not the videos. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंस्टाग्राम पे एक बिजनेस अकाउंट होता है तो एंड क्रिएटर अकाउंट होता है. डू वी हैव टू क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट? No, you can use a creator account. So creator accounts पे, because you're a creator, content creator, so definitely you can put a creator account. You can use that both. I'm using my creator account right now. Okay, yeah, plus creator account gives you access to a lot of songs as Yes. well, I've heard. That's right. Yes. The next question is, ma'am, how do we check when our followers are active? So inside, there's an option inside. Go on inside options and there you have to click, सब कुछ click करते रहो, and then you will एक option आता है जिसका नाम मुझे भी at times याद नहीं रहता. वहां पर आता है कि आपके followers किस टाइम पे कौन से days पे ज्यादा active है. So search that inside and settings. Inside and और settings दोनों पे search करो. और अगर देखो ऐसे पॉइंट पे अगर नहीं समझ आ रहा, योर बेस्ट सॉल्यूशन इज यूट्यूब. गो ऑन यूट्यूब, राइट हाउ टू सर्च इनसाइड और हाउ टू सर्च योर फॉलोअर्स आर एक्टिव एट दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको यूट्यूब पे पूरा ट्यूटोरियल दिखा देगा कि आपको कैसे वो पर्टिकुलर प्लेस फाइंड करनी है. Correct. A lot of questions ki how to edit a video, how to make transition video, and how to do multi-transitional videos like some of the professional people like relate with Tanya and everybody else. Okay, so first of all, reels कैसे create करनी है, it's a totally different thing. Reels में they really work hard. जो आप जिनकी बात कर रहे हो, they create different looks, maybe on different days. और वो short clippings रहते हैं. For example, right now I am putting a lipstick with this look. Next day I will be using a different look, entirely different lipstick, entirely different eye makeup, and मैं वही same चीज कर रही हूँ.
एंड मुझे दिखाना है कि अलग अलग लुक्स के साथ मैंने ये एक सेम एक्शन के, सो मैं अलग अलग कुछ लुक क्रिएट करूंगी, कट शॉट करूंगी, कट शॉट करने के बाद रील पे अलाइन करूंगी। सो ये आपके फोन में भी ऑप्शन होता है कि बड़ी वीडियो को कट शॉट कैसे करना है, सो दैट यू नीड टू फिगर इट आउट। तो बेसिकली रील्स क्रिएट ऐसे ही होता है, इट्स ऑल अबाउट कट शॉट, कि आपने वीडियो आपने इतनी बड़ी बनाई, आपको सिर्फ उसमें से 5 सेकेंड या 9 सेकेंड्स का आपको कंटेंट चाहिए, तो यू कैन क्रॉप दैट वीडियो एंड टेक आउट दैट वीडियो। सो देखो ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक दिस ओनली। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ का दिखाना है, तो पहले मैं यहाँ का शूट करूंगी, फिर मैं यहाँ का शूट करूंगी, दोनों को अलाइन करूंगी, एंड दैट्स हाउ वी मेक रील। ट्रांसफॉर्मेशन रील ऐसी ही बनती है, इट टेक्स टाइम, इट्स अ लॉन्ग, मतलब वो जो आप लेवल कह रहे हो, लाइक मेघना, मेकअप बाय मेघना, शी इज सो गुड विद ट्रांसफॉर्मेशन रील्स, सो शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दैट रील फॉर अस। सो इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ मैटर, ये 10 मिनट का काम नहीं है, ये 2-2-3 घंटे का काम होता है। हाँ, वो ऐसे करके ऐसे कंसीलर कर देती है, फिर ऐसे करके हाँ, पूरा मेकअप कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें एक में शी इज बिकमिंग अ टाइग्रेस एंड अदर में शी इज लाइक अ क्वीन, तो ऐसे ऐसे करके जो वो कर रहे हैं, तो ऐसे पहले वो करते हैं टाइगर लुक के साथ, फिर ऐसे वो क्वीन के साथ वो एक्शन करके देन वो अलाइन करते हैं। तो आप सोचो ना, 2 डिफरेंट लुक्स क्रिएट करके वो एक रील बनती है, दो दो तो तीन ऐसा बन। दिन लग जाते होंगे ये सब करने में, but it genuinely hits the audience. They are known for those multi-transitional videos. The question that we got was कि multi-transitional videos like relate with Tanya, तो उनका नाम जुड़ चुका है ऐसी वाली videos में. So I think this is also important in growing our business. They have see guys, you have created a niche, उन्होंने niche बना ली, एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लुक्स की एक नीश बन गई, कि उनके पास लोग अकाउंट में इसी इंटरेस्ट में उनको फॉलो करते हैं कि अब उनका क्या एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रील्स आएगी। तो आपको भी अपना एक ऐसे ही नीश बनानी है कि लोग आपको एक रीजन से फॉलो कर रहे हैं, एक जनरल मेकअप की वजह से फॉलो कर रहे हैं, या प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस की वजह से फॉलो कर रहे हैं, या जस्ट एज अ मेकअप आर्टिस्ट जो फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट है उसकी तरह फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे अपना अकाउंट को अट्रैक्टिव बनाना है। Okay, and should we use the front camera or back camera of the phone while shooting? So when I am shooting, I use front camera, but जो better quality आती है, no doubt वो back camera से आती है, no doubt. So if you have another person with you जो आपकी help कर सकता है content बनाते हुए, so tell that person to phone ऐसे चाहे अपने ring light पे हो तो जाता है, but आपको अपना face नहीं दिख रहा. So you need to take help from someone in your house and उनसे help लो, और अपने बैक कैमरा से भी बनाने की कोशिश करो, बिकॉज वो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। एंड किस एंगल में हमें रील शूट करनी चाहिए? एंगल से देखो, देयर इज नो एंगल, सब कुछ जैसे अब वेरी करता है। अगर आप मेकअप ट्यूटोरियल दिखा रहे हो, ऑफ कोर्स यू वांट टू शो योर मेकअप एवरीथिंग वेरी क्लियरली, सो 2 तरीके आते हैं। जैसे आपने अभी एक तान्या मेकअप, आई थिंक शी इज अ पर्सन जो ट्यूटोरियल ज्यादा करती हैं, एंड उनका बहुत क्लियर नजर आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज शी इज यूजिंग अ प्रोफेशनल कैमरास, शी इज यूजिंग DSLRs, शी इज यूजिंग कैनन कैमरास। वो प्रोफेशनल कैमरा यूज करके डिस्टेंस पे भी रखेंगे ना, तो उनका बहुत क्लियरली नजर आएगा। बट हम अगर सिर्फ फोन से यूज कर रहे हैं, so phone पे you have to keep your phone closer, put your mirror here, do your makeup and record करो clippings में। So that's how देखो, ये एक मतलब simple way out है अपना ट्यूटोरियल बनाने का। या फिर नेचुरल, if you have a place जहाँ पर नेचुरल लाइट आ रही है, रिंग लाइट वहां रखो, रिंग लाइट ऑन मत करो, अपना फोन सिर्फ रखो, नेचुरल लाइट पे बहुत अमेजिंग मेकअप आता है। Okay, next question is ऑलराइट, कि मैम मेकअप की सिर्फ वीडियो ही पोस्ट करे बस, और कुछ नहीं? नहीं, क्यों? मेकअप, अब देखो आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आप मेकअप रिलेटेड ही पोस्ट करोगे ना, राइट? मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इफ यू आर अ मेकअप ब्लॉगर, अगर आपका सिर्फ ब्यूटी ब्लॉगर बनना है, तो आप सेल्फ सारे मेकअप करो। मतलब आप अपने ऊपर सेल्फ मेकअप रिलेटेड वीडियोस बनाओ, या अपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस बनाओ, अपने टूल्स को कैसे क्लीन करना है उस रिलेटेड मेकअप बनाओ, रील्स बनाओ। तो डिफरेंट टॉपिक विच शुड बी रिलेटेड टू मेकअप। सो क्रिएट रील्स, पोस्ट सही टाइम पे करो ताकि एंगेजमेंट सही आए, हैशटैग सही डालो, लोगों को रीच बनाने के लिए उनके पोस्ट पे भी कमेंट करो, ताकि वो भी इन रिटर्न देखें कि अच्छा ये कोई है जो पोस्ट करे जा रहा है, उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स। ब्रांड्स को टैग करो, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मेकअप करते हो, अगर आपने लैशेस यूज करें किसी अच्छे ब्रांड के, या लेंसेज भी यूज करें ना अच्छे ब्रांड के, उनको टैग करो उस रील में, उस कंटेंट में,
बिकॉज वो ब्रांड्स आपके रील को रीशेयर करते हैं क्योंकि उसका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उस रील के अंदर. सो एक तरीके से उनका तो फ्री में पीआर हो रहा है. ठीक है, उनको आप वो कुछ दे भी नहीं रहे आपको, इन रिटर्न उनके पास एक कंटेंट आ गया तो वो रीशेयर करते हैं. जब वो रीशेयर करते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जो उनको फॉलो कर रहा है वो भी आपका वर्क देखेगा. सो टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना. यस, पीआर का मतलब क्या होता है? ओके, पीआर इज समथिंग लाइक पेड पैकेजेस जो आप देखो, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे अभी these days कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो सब मेकअप आर्टिस्ट के पास आ जाते हैं अपने आप, वो सब भी अच्छे अच्छे रिव्यूज दे रहे होते हैं. दैट इज पीआर. आपका काम कोई एक ब्रांड है, सपोज मेरा एक ब्रांड है, तो मैं उसको जाके कैसे मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं ब्लॉगर्स को गिफ्ट कर रही हूँ या मैं मेकअप आर्टिस्ट को गिफ्ट कर रही हूँ, और वो इन रिटर्न मेरे लिए रील्स बना रहे हैं, मेरे लिए कंटेंट बना रहे हैं, मेरे लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं. सो दिस इज ऑल पीआर. ये हम क्या कर रहे हैं, ये सारी मार्केटिंग कर रहे हैं. दिस इज ऑल पीआर. तो ये यूजुअली क्या होता है, दिस आर पेड. if I'm contacting a very known personality, I need to pay them so that they can talk good about my stuff. So this is what PR, this is how it works. So right now, because obviously जो इग्नर्स होते हैं उनके पास एकदम से कोई ब्रांड नहीं आता, तो उस ब्रांड, अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स के ज्यादा प्रोडक्ट्स है, सपोज आपके पास मेबलिन के ज्यादा प्रोडक्ट्स है, तो बार बार टैग करो मेबलिन को, सो दैट मेबलिन शुड नो दैट यू आर अ वेरी कंसिस्टेंट पर्सन हु इज यूजिंग द प्रोडक्ट एंड saying good things about the product or giving very genuine reviews about product, or giving information to the audience कि उस प्रोडक्ट को किस डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं, नॉलेज दे रहे हैं. तो ऐसे धीरे धीरे ब्रांड्स आपके पास आते हैं. आपको ब्रांड्स को करना पड़ता है कांटेक्ट, मेल करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, बट साथ साथ उनके लिए कंटेंट भी बनाओ, उनको टैग भी करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, फोन को हैंग करने के लिए वॉल पे कोई मैग्नेट आता है क्या? नहीं, ये तो कभी नहीं यूज किया, वो भी फोन और मैग्नेट नॉट एट ऑल. You have to hang the phone on your ring light stand, right? Mobile holder. Yes, is right. Digitech is a brand जिनका स्टैंड ही आता है, और वो स्टैंड ही आता है, और अलग से Digitech का रिंग लाइट भी आता है. सो उनको असेंबल करके हैंग, अपने आप एक टूल होता है जिस पर अपना फोन हैंग कर सकते हो. Okay. What about the security of our Instagram account? She is talking about the sticker that is used in our cars, जो हम cars में use करते हैं. She is talking about that sticker. I just read her comment. वो जो हम cars में use करते हैं, but मैंने कभी wall पे नहीं use किया, and I don't think it's a good idea क्योंकि उनकी sticking power इतनी अच्छी नहीं होती है, फोन गिरने के chances होते हैं. Sorry. रील बनाते बनाते गिरा मत देना फोन, पता चला बोला कि आंचल मैम ने बोला था. Okay. So yes, we'll answer all of your questions, folks. I have been keeping a track of all of them. Don't worry, do not repeat your questions so that we can keep a track of all of them that there have been. Next question is, what about the security of our Instagram account? How do we keep it secure? See, how can you see? Let me tell you very simple thing. If your Instagram, your account is open, now you cannot have a hold कि आपका Instagram में कौन screenshot ले रहा है. Obviously, you can't do that. But Instagram is secure enough कि if you see or your followers see that somebody is copying your work, he or she can, आपको वो बता भी सकते हैं. साथ में there are options कि block this person, complaint against this person, that why reasons भी आते हैं कि क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट चुराया है, whatever reasons जो होते हैं, जो suitable reasons होते हैं, connect with that. So this is it's secured enough. And plus see, आप एक लिमिट तक सिक्योर रख सकते हो इंस्टाग्राम को. आफ्टर दैट यू कांट हेल्प इट आउट. आप नहीं रोक सकते किसी को स्क्रीनशॉट आपके काम का लेते हुए, बट इतना नहीं होता, बहुत कम ही होता है कि ऐसे केसेस हो. अभी तक मैंने बहुत रेयर लोगों के सुने कि उनके अकाउंट हैक हो गए, क्योंकि मे बी उनका बहुत एक्सट्रीम फॉलोअर्स है तो इसलिए हैक हो गए. तो ये रेयर होता है, ये इतना ज्यादा नहीं होता. Okay. All right, next question is about registration. कोई मेकअप आर्टिस्ट को कहीं रजिस्टर करना होता है क्या मैम अपना वर्क करने के लिए? तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ बैड आइडिया. मैंने अभी आपको बताया था कि व्हेन यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, तो जैसे वेडमी गुड हो गया, शादी विश हो गया, बहुत सारे ऐसे वेडिंग पेजेस है. सो इसमें आप फ्री में अपने आप को एनलिस्ट करा सकते हो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू पे द मनी. देखो वो चार्जेस लेते हैं, एक चार्जेस होते हैं उनका
कि जिसमें वो आपको आके लीड्स देंगे, 100 लीड्स देंगे, अनलिमिटेड लीड्स देंगे, जिसमें आपको उनको कन्वर्ट करना है अपने क्लाइंट में, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पेड थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इनलिस्ट योरसेल्फ. उसमें आप फ्री में भी कर सकते हो. बस ये होता है कि वो आपको इन रिटर्न आपको खुद आके लीड्स नहीं देते. उसमें कोई रैंडमली आ गया, उसने आपकी प्रोफाइल देख ली, खुद कनेक्ट कर लिया, वो ऐसे वर्कआउट होता है. बट उसमें इनलिस्ट होना इसलिए अच्छा है बिकॉज ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, जो जिसका नाम मैंने गूगल किया तो कितने सारे जगह पे इनलिस्टेड है, वो अपने आप आ गया. अब वो किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि आपने पैसे दिए या नहीं दिए, राइट. बट एक इम्प्रेशन जनरेट जरूर हो गया. सो इट्स अ गुड थिंग. यू शुड गूगल करो, जिससे मुझे 2-3 पता है. शादी विश हो गया, वेट मी गुड हो गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं. सो गो एंड सर्च देम. उधर अपने आप को इनलिस्ट करो, अपने पिक्चर्स डालो, अपलोड कर दो, इंफॉर्मेशन डालो अपनी जनरल, जो जो अपने आप की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, एंड दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल रैंकिंग, गूगल बिजनेस में रजिस्टर करने का कोई प्राइस होता है? यस, देखो गूगल गूगल पे अगर आपको जाना है, अपने आप को लिस्ट कराना है, सो दे टेक अमाउंट लाइक अराउंड, अलग अलग अमाउंट होता है. और वो क्या होता है, आई टेल यू. उसमें क्या होता है, उस केस में होता है कि जैसे अगर आपको कोई सर्च करेगा, ठीक है, तो आपका नाम ऊपर ऊपर आने लगेगा. वो तब आएगा जब आपके पास अच्छे अच्छे रिव्यूज भी होंगे, अच्छे अच्छे रेटिंग्स भी होंगे, जो आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए कर ही देंगे, राइट. तो उसमें होता है कि दे कैन whosoever wants to write like makeup artist near Noida, तो आपका नाम आ जाएगा क्योंकि आपने लोकेलिटी भी डाली होगी, और साथ ही साथ आपका फोन नंबर भी आ जाएगा. एंड वो डायरेक्ट कॉल करेंगे तो आपके पास कॉल आएगा. कॉल में आपको ये भी सुनाई देगा, कॉल फ्रॉम गूगल, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि गूगल के थ्रू कॉल आया है, एंड देन दैट पर्सन कैन कनेक्ट विद यू. सो उसके लिए फीस लगती है, लाइक मिनिमम लगती है, बहुत ज्यादा नहीं लगती. सो यू कैन, अलग अलग पैकेज टाइप्स होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा. Okay, the link for the Google business registration will also be left for you in the chat box. I did send it. I'll send it one more time. Okay. Yeah, it's just an application. Okay, so Google business it is. You can go ahead and install it for your own good. Twitter के बारे में बताइए मैम. Can Twitter help makeup artists grow their business? See, Twitter, I haven't used it yet because Twitter is just not, मतलब देखो Twitter पे अपने आप को publicity देना is a different way, so I don't use Twitter, so I can't comment about Twitter right now. जो चीज मैंने यूज नहीं की, मैं उसके बाद में आपको नहीं बता सकती. Okay, can we post the same content for consecutive 2 to 3 days? For example, एक दिन हमने post कर लिया, दूसरे दिन. Yes, क्यों नहीं. कई बार होते हैं कि आप अपनी एक रील बनाई अपने एक हफ्ते पहले, उस टाइम पे इतनी एंगेजमेंट नहीं आई रील पे, तो कुछ दिनों बाद या लाइक 6 या 4-5 डेज बाद उसको दोबारा डालो, फिर से रीच बढ़ेगी, रीच भी बढ़नी शुरू होगी. कितने 1-2 फॉलोअर्स भी बढ़ जा चुके होंगे आपके, या कुछ फॉलोअर्स होंगे जिन्होंने वो रील मिस कर दी, स्टोरी नहीं देखी, वो दोबारा वो स्टोरी भी देख लेंगे, एक व्यूज भी बढ़ जाएंगे. सो इट्स अ गुड थिंग. रीशेयर योर वर्क, इट्स नॉट एट ऑल बैड थिंग. Okay. Initially, do we have to keep receipt books for our bookings? You are talking about books that जिसपे हम bookings लेते हैं. It's okay, it's good. Specifically अगर आपका salon है या कुछ ऐसी space है जहाँ आप अपना work करते हो मेकअप का, so it's good thing, you should keep it. आप अपना books बनाओ, register अपना उसमें booking amount लिखो, अपनी पेमेंट जो आपने पहले ली एज अ बुकिंग अमाउंट उसको भी मेंशन करो, पेंडिंग, ठीक है, होना चाहिए. इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ प्रूफ. आपके लिए वो एक हैंडी प्रूफ हो गया कि आप क्लाइंट के पास जाते हो, एटलीस्ट वो रिफ्यूज नहीं कर सकता कि उसने आपको पैसे पूरे दे दिए नहीं दिए, तो एक प्रूफ की तरह हो जाता है. यस, यू शुड कीप इट. रिसीट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लाइंट आया है, उसने आपसे ऑनलाइन बात करके ऑनलाइन पेमेंट दी है, तो आप उसकी पिक्चर क्लिक करके रिसीट की पिक्चर आप उसको व्हाट्सएप करो. सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव. Okay. Preeti asks, what is the difference between a makeup artist and a beauty blogger? Okay, makeup artist means who is just working on who is working on different faces, like working on brides, engagement, roka, party, models. वो होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है. मेकअप ब्यूटी ब्लॉगर होते हैं जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं टेक्निकली अपने ऊपर लगा के.
So if I'm a beauty blogger, तो मैं अपने ऊपर मेकअप कर रही हूँ with different products, different looks I'm creating for my audience to show कि oh my god, this is a palette, this is a new palette, it's a great palette, it's not a good palette, it's a reasonable palette. So I'm selling products and same meanwhile I'm using it on my face, I'm teaching them simultaneously. तो ब्यूटी ब्लॉगर का काम होता है अपने ऊपर कंटेंट बनाना, अपना फेस यूज करना डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, एंड उस प्रोडक्ट्स के साथ फिर धीरे धीरे वो लोग they get in contact with those brands, और फिर वो brands और वो बन जाते हैं उनकी they have a contracts and everything, then they start promoting their products. तो ऐसे ब्यूटी ब्लॉगर का काम होता है. Okay. I had a talk with the model. She said that she will only do a paid promotion. So do I have to pay them and मुझे makeup free में करना होगा? होता है. This is what I told you initially कि आपको स्टार्टिंग में देखो, आप ये मत सोचो कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं मेकअप के लिए. आप ये सोचो कि आपको पिक्चर्स चाहिए ताकि आपके क्लाइंट जो आ सकता है आपके पास उसको दिखा. देखो, जब कोई कांटेक्ट करता है आपके पास आके तो वो क्या पूछता है? पिक्चर्स. वो कहता है प्लीज शो मी पिक्चर्स. अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं होंगे तो आप क्या दिखाओगे? कुछ भी नहीं दिखा पाओगे. इसलिए इनिशियली ढूंढो, सर्च करो जो आपके साथ कोलैब करे, फ्री में करे. तो आप थोड़ी जो बिल्कुल न्यू से होते हैं, जिनके खुद के पास भी अभी नया नया काम शुरू होता है ना, तो उन गर्ल्स को सर्च करो. नहीं मिलती तो इफ यू नीड टू पे देम देन यू कैन पे देम. इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर यू, तुमको पे करके उनका मेकअप करो. एज कीप दिस इन योर माइंड कि सी आई एम यूजिंग हर फेस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बेनिफिट, क्योंकि मैं उस फोटोग्राफ से अपने उस क्लाइंट को भी कन्विंस कर सकती हूँ. मोर ओवर देखो, आपको ना एज अ मेकअप आर्टिस्ट प्रैक्टिस की नीड होती है. आप अपने ऊपर मेकअप कर रहे हो वो बहुत अलग होता है, बट आप एक क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो. डिफरेंट स्किन के टेक्सचर के ऊपर काम करना इज टोटली अ डिफरेंट आउटकम, टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. क्योंकि आज की डेट में भी मेरे पास डिफरेंट स्किन आती है, तो मैं देखती हूँ कि अच्छा इस स्किन के लिए मुझे मॉइस्चराइजर ज्यादा लगाना है, कम लगाना है, कंसीलर ज्यादा लगाना है, कम लगाना है. तो मतलब मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रही हूँ एक डिफरेंट फेस के साथ. तो आप ऐसे सोचो कि ठीक है, आई एम पेइंग हर, बट इन रिटर्न आई एम गेनिंग माई नॉलेज. मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, मेरा हाथ साफ हो रहा है, एंड साथ ही साथ मुझे पिक्चर भी मिल जाएगी, रील भी मिल जाएगी. Absolutely. So before we move forward, folks, मैंने सब लोगों की Instagram IDs आपके chat box में डाल दी है. Go ahead, follow all the 3 accounts and let us know that you attended this session so that we can help you further on Instagram and connect with you, make you grow over there as well. Make sure that you're letting Achal know that you liked today's session. And of course, with that being said, next question is how to get sponsored on Instagram. How to get sponsored on Instagram or how to sponsor your work on Instagram. These are two different things. एक होता है अपने काम को स्पॉन्सर करना, लाइक अपनी स्टोरीज, अपने कंटेंट को बूस्ट करना, और खुद को स्पॉन्सर करने का मतलब है कि कोई ब्रांड आपके पास आ रहा है आपको स्पॉन्सर करने के लिए. कि फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड है, लाइक हुडा ब्यूटी इज अ ब्रांड एंड शी इज सेंडिंग हर थिंग्स टू यू, हर प्रोडक्ट्स टू यू, तो वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं. So gaining sponsors for your work is totally a different thing. For that, you need to connect with the suitable brands. आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनको मेल करना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है. और देखो, स्पॉन्सरशिप तक आने के लिए आपको बहुत ही अपना एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो आपके पास आए आपको फ्री में कुछ स्पॉन्सर देने के लिए इन रिटर्न. If they want to sponsor their business, आपको दिखाना, ताकि आप उसको मार्केट करो, तो आपको उस पर्टिकुलर लेवल तक आना ही है, अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी ही है, ताकि आपके पास लोग आए आपको अपना चीज प्रोडक्ट देने के लिए, सो दैट आप उसकी मार्केटिंग करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज की शुरुआत तभी होगी जब आप अपना काम को आगे बढ़ाओगे, बाय गेनिंग एंगेजमेंट, बाय वर्किंग हार्ड ऑन योर प्रोफाइल. Absolutely. Okay. Next question is, मैम अगर हमें दूसरों को सिखाना है, क्लासेस लेनी है, तो हम उन्हें सर्टिफिकेट कैसे दें और उस सर्टिफिकेट को बड़ा कैसे बनाएं? देखो, सर्टिफिकेट कैसे दे, सो यू आर आस्किंग मी कि हाउ टू जनरेट. देखो, एप्लीकेशंस होती हैं, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस वेयर यू कैन गो ऑन गूगल, यू कैन सी सैंपल्स मिलते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वो आपको सैंपल्स दिखा देते हैं. आजकल जैसे सैंपल्स आप कार्ड्स के भी आते हैं, पैम्पलेट्स के भी आते हैं, यू कैन चूज एंड राइट. तो वैसे ही एक आपको पैम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको सर्टिफिकेशंस के
मतलब लिंक्स मिल जाएंगे जहां पर यू कैन चूज डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिजाइन्स, एंड देन यू कैन राइट योर नेम एंड क्रिएट अ सर्टिफिकेट. अगर नहीं समझ आ रहा, सो यू कैन ऑलवेज गो नियर बाय अ प्रिंटर. देखो जिनका काम होता है प्रिंटिंग के रिलेटेड, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया, टेक्निकली प्रिंट मीडिया हुआ, तो राइट, गो टू द राइट पर्सन, लाइक जिसका काम प्रिंटिंग से रिलेटेड हो, न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो, सो दे कैन ऑलवेज टेल यू हाउ टू क्रिएट अ सर्टिफिकेट लाइक दैट. सो आपको ये प्रिंट मीडिया पर्सन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इसके लिए. Okay, great. So Rajeshwari and everybody else want to know कि मैम अगर हम बिगिनर हैं, हमारी लोकेलिटी में जो लोग हैं, जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ से आते हैं, कोई कोई आउट ऑफ स्टेशन भी हो सकते हैं, तो हाउ कैन वी गेट आवर लोकेलिटी फॉलोअर्स, हाउ कैन वी रीच आउट टू आवर इंडिया एंड आवर प्लेस? अच्छा ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आता है आपका रोल हैशटैग से. सो जब आप अपना कंटेंट बना लेते हो, सो आप अपने नियर बाय लोकेलिटी को पहले हमेशा कोशिश करो, टारगेट करो. सो दैट्स योर टारगेट ऑडियंस. ओके, सो व्हेन यू आर नाउ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट और अ मेकअप ब्लॉगर, सो हैशटैग इफ यू लिव एट, आप दिल्ली में रहते हो तो आप डालोगे दिल्ली मेकअप आर्टिस्ट, और दिल्ली एनसीआर मेकअप आर्टिस्ट, और नोएडा मेकअप आर्टिस्ट, गुड़गांव मेकअप आर्टिस्ट, गाजियाबाद मेकअप आर्टिस्ट, यूपी मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे हैशटैग्स डालो. वो हैशटैग्स जो होते हैं वो उन लोगों के पास जाते हैं जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेन द फॉलोअर्स जो आपके उस एरिया के आसपास होते हैं. What is the best time to post the reels, and reels में song डाल सकते हैं मैम? अकॉर्डिंग, यस, रील पे तो सॉन्ग सभी डाल सकते हैं, तो सभी डालते हैं. ट्रेंडिंग मीन्स व्हाट? ट्रेंडिंग में जब आप रील बनाते हो तो एक म्यूजिक का एक लोगो होता है, देयर यू हैव टू क्लिक. वहां क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑडियोज आते हैं. ऑडियोज मीन्स सॉन्ग्स आते हैं. सो या तो आप उन एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स में से सिलेक्ट कर सकते हो, या जब आप किसी की रील देखते हो, आपको लग रहा है ये रील बार बार, ये सॉन्ग जो मैं बार बार सुन रही हूँ, दैट मीन्स ये रील जो ट्रेंड में है, तो उसको सेव करो. उस रील जहां पर गाने का एक नाम आता है उस पर क्लिक करो, सेव करो, वो ऑटोमेटिकली आपके ऑडियो में सेव हो जाता है. फिर अपने ऑडियो पे जाओ, उस रील को, उस म्यूजिक को यूज करो, तो आपका म्यूजिक तो ऐसा ऐड हो गया आपकी रील में. सेकंड क्वेश्चन वाज, आई फॉरगॉट सेकंड पॉइंट. टाइम का बेस्ट टाइम टू पोस्ट इट. बेस्ट टाइम, देखो वो तो आपके एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक बार यूट्यूब करना कि कैसे चेक करते हैं इन साइट्स पे जाके कि कौन सा टाइम पे आपके फॉलोअर्स एक्टिव होते हैं. तो आपके पेज, आपके जो फॉलोअर्स है, अगर आपके एक्टिव हो रहे 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उस टाइम के आसपास है, उस टाइम पे अपने रील्स और कंटेंट डालते रहो. चेक करो कि वो मतलब क्या, कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना बेटर इम्प्रूवमेंट हो रही है. Okay, not a question but a compliment from Rajni K. She says you're such a sweetheart, telling everything in so much detail. That is so cute. Thank you so much. Next question is personal account and professional account अलग अलग बनाना होता है? देखो पर्सनल अकाउंट, यस, आई वुड सजेस्ट दैट पर्सनल और प्रोफेशनल अलग बनाओ, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ क्लाइंट मुझे नहीं आपके घर में आप पार्टी कहाँ कर रहे हो, आई हैव नो इंटरेस्ट, आई हैव जीरो इंटरेस्ट. इनफैक्ट देयर आर टाइम्स जब ब्लॉगर्स ने, मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत ट्रेंड चला दिया था कि वो पार्टी कर रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं. ठीक है, देयर इज अ लिमिट. तो एक टाइम बाद आई गेट बोर्ड एंड मैं उनको अनफॉलो भी कर देती हूँ कि अब मैं बोर हो गई, यही घूमे जा रहे हैं, पार्टी करे जा रहे हैं, मैं क्या इसमें मुझे क्या मिल रहा है उसको देख देख कर, कुछ भी नहीं. इनफैक्ट समवेयर और आई एम गेटिंग इरिटेटेड, यार ये तो घूमते जा रहे हैं, मैं नहीं देख रही. राइट, सो किसी को आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, एक लिमिट तक. क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट में एक फाइन लाइन है कि क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी अपने हाइलाइट्स में डाल के सेव कर दो. मन करता है ना कि अपनी क्यूरियोसिटी लोगों की फुलफिल करनी है, तो स्टोरी डालो, स्टोरी को हाईलाइट बना लो, और हाईलाइट पे उसको अपना नेम दो, उस पर डाल दो, बट पोस्ट मत करो. आई वोंट सजेस्ट पोस्ट योर पर्सनल स्टफ ऑन योर प्रोफेशनल पेज. ऐसे क्वेश्चन आया था कि हमें स्टोरीज और पोस्ट, स्टोरी डालनी है या पोस्ट डालनी है या दोनों डालनी है? एवरीथिंग. अगर आपने कंटेंट क्रिएट करा है, सो मेक श्योर आप उसको स्टोरी में डाल. पहले तो आप ऑब्वियसली रील बनाई, तो रील तो आपका पोस्ट होगा, उसी रील को आप शेयर करो अपनी स्टोरी पे, या फोटो भी डाली ना अगर आपने, तो उस पिक्चर को आप अपनी स्टोरी पे डालोगे. यस, दोनों करना है. इनफैक्ट फेसबुक पे भी साथ साथ आता है ऑप्शन कि वांट टू शेयर इट ऑन फेसबुक और ऑल्सो शेयर इट ऑन फेसबुक एज वेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टाग्राम पर अगर हम लाइव आए भी तो उसमें क्या कंटेंट शो करें? Yes, so this is a good question.
पहले क्या करना है, आपको एक ना वो बनानी है, यू हैव टू क्रिएट आपको एक, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने सोचा है कि आज आपका मन कर रहा है मेकअप करने का एंड यू वांट टू कम लाइव एंड डू अ मेकअप, पर आपको ये है कि आपके ऑडियंस को कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना कि आप लाइव आके क्या करने वाले हो, ठीक है। तो पहले आप जैसे अपना एक ऑडियो, अब देखो स्टोरीज पे भी हाउ यू कैन इंटरैक्ट, अपनी एंगेजमेंट अपनी स्टोरीज पे भी बनाओ। तो जैसे आपने स्टोरी डाली, पिक्चर डाली अपने वर्क की कोई भी, एंड राइट इट, क्वेश्चन पोल्स होते हैं, राइट, पोल्स होते हैं ना, उस पे लिखो डू यू वांट मी टू कम लाइव, तो ऑब्वियसली या आप लिखो कि डू यू वांट मी टू कम लाइव एट 9 o'clock और 10 o'clock, 10 PM और 9 PM। तो जिस पे आप देख रहे हो मैक्सिमम वोट्स है उस टाइम लाइव आ जाओ। डू यू वांट मी टू शो अ ट्यूटोरियल और डू यू वांट मी टू शो यू अ रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन रील, तो आपको समझ आएगा कि आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा क्या मांग रही है, जो चीज वो चाह रहे हैं आपसे, आप लाइव आके वो चीज करो। I think that's how you can do. Okay, I think Prachi is right now. She will reconnect. Maybe some internet problem. So guys, ऐसे ही करना है. ऐसे ही लाइव पे आके आप अपने ट्यूटोरियल्स दिखा सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स जो भी अपने बताओ कि आई एम हियर टुडे, आई वाज थिंकिंग कि मैं आज मेकअप रिलेटेड क्वेश्चंस लूं, मेकअप रिलेटेड चीजें दिखाऊं, and then do it, ask them, they will ask you through comments, answer them. So like that you can do. See ring light, now you were talking about ring light. So ring light ka what you can do, so guys ring light what you can do, आप cool और warm का जो एकदम वो हो गया ना, मिडिल मिडिल जो कलर आता है, यूज दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा वार्म कर दोगे तो येलो फेस नजर आएगा, बहुत ज्यादा कूल कर दोगे तो व्हाइट नजर आएगा। सो न्यूट्रल होना चाहिए, व्हाइट एंड येलो का न्यूट्रल सेटिंग होती है, अपने आप करते रहो, फिगर आउट करो कि न्यूट्रल क्या लग रहा है, एंड देन सी, एंड ऑलवेज चेक, वीडियो बनाते हुए चेक कर लो, एक छोटी सी 2-3 सेकंड की वीडियो बना लो कि इस लाइटिंग में बेटर आ रही है, इस लाइटिंग में बेटर आ रही है, एंड देन डिसाइड इट योरसेल्फ। इंस्टाग्राम के लिंक शेयर कैसे, अच्छा जब आप व्हाट्सएप, जब आप देखो लिंक जो होता है ना वो सेटिंग फेसबुक के और उसमें लिंक कॉपी लिंक होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उनको कॉपी लिंक करो एंड देन शेयर इट on different websites, and I mean I'm talking about Facebook or WhatsApp. Okay, so let me tell you one thing. Google Pay, when you want to register, guys, that is free. Okay, register आप Google Pay free कर सकते हो. But I told you कि अगर आपको ads चाहिए, कि लोग आपकी ad की तरह आपके Google को देखेंगे, आप जब Google पे कोई सर्च कर रहा है मेकअप आर्टिस्ट, तो as an ad आपका नाम है, तो you have to pay for that. But simple register कराना है, you don't have to pay anything. गुड रिंग लाइट, सी डिपेंड, बहुत सारे रिंग लाइट्स है, आई एम यूजिंग कोटेक रिंग लाइट राइट नाउ, तो कोटेक तो बहुत अच्छा है, ये सबसे मैंने कम लाइट पे करा हुआ है, यू कैन सी इट्स अभी इतना क्लियर एंड इट्स गिविंग मी अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट, सो कोटेक इज रियली नाइस, बट इट्स ऑन हायर साइड। व्हाट्सएप पे पिक स्टेटस पे डालने पे बहुत ब्लर होती है, यस यस। सो गाइज ऑब्वियसली जब आप व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर करते हो तो पिक्सेल्स खराब होने लग जाती है, सो इन दैट केस डू वन थिंग, एयर ड्रॉप, इफ यू आर आईफोन यूजर एयर ड्रॉप करो, ठीक है, डायरेक्ट अपने एल्बम से व्हाट्सएप पे डालो, थोड़ी ब्लर होती है, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट। हाँ, व्हाट्स हैपनिंग, देखो क्रिएटर अकाउंट आपके बिजनेस अकाउंट ये सेटिंग्स पे जाके आ जाता है इंस्टाग्राम पे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड कि कहाँ से ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पे, तो थोड़ा सा गाइस यूट्यूब करो, गूगल करो, सब चीजों का ट्यूटोरियल्स आता है, एवरीथिंग एवरीथिंग एज अ ट्यूटोरियल ऑन इट्स ओन। सो प्राची इज बैक, मैंने ओके, देयर इज नो रिकैप, मैंने सब कुछ वही चीजें बताई है। सो मैंने प्ले स्टोर पर गूगल पे बिजनेस नहीं है, इट्स गूगल पे इज डिफरेंट, गूगल पे बिजनेस इज एब्सोल्यूटली,
So it's not Google Pay, it's Google My Business. Let me tell you again, अगर आपको Google पे register कराना है तो Google My Business पे जाओ. It's there on App Store. Google My Business. Prachi is not here. What's happening? Okay, our host is right now. I don't know. There's some technical glitch, guys. So मैं जितने जितने message पढ़ पा रही हूँ मैं उतने पढ़ के आपको जवाब दे रही हूँ. Is it paid? B12 is not paid. Free app है. उसमें कुछ फीचर है जो कहता है कि आपको उसके लिए you have to pay. Don't use that feature. देखो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आंसर कर दिया है कि मॉडल से अगर आपको कह रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको उसके फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा लगेगा उसके ऊपर मेकअप एंड यू हैव टू पे देम, सो इट्स ओके टू पे. एज आई टोल्ड यू कि कभी कभी पे करना पड़ता है क्योंकि आपको अपने मतलब के लिए अपने उसके लिए करना पड़ता है. गूगल माई बिजनेस इज नॉट पेड. अगर आपको एड दिखाना है गूगल पे अपने नाम का, अपने काम का, सो इन दैट केस यू नीड टू पे मनी. Okay, give me guys. Prachi is not okay. Let me just see. Ask to unmute. Prachi, I'm not able to unmute you. Yes. Hi, Achal. I'm really sorry I got dropped. Yes. Okay. Thank you so much. So I think with that being said, most of the questions that we had in the chat box are answered, and we can wrap up our session now. Is there anybody whose question isn't answered? Let us know. Yes. All right. Okay, Swati, you can go ahead and let us know your question. Okay, so one question that I had, I don't know if this was answered, is ring light में कौन सी light का use करें, cool, warm or medium for makeup? Medium. I told her, मैंने एक आंसर ले लिया है कि देखो बहुत वार्म करोगे तो येलो नजर आएगा, बहुत व्हाइट करोगे बिल्कुल तो कूल कर लोगे तो बहुत व्हाइट नजर आएगा. इनफैक्ट कभी कभी अच्छा ही नहीं लगता. इट्स नॉट सूदिंग. न्यूट्रल जो मीडियम हो गया ना, इट्स दैट इज बेटर. राइट नाउ आई एम यूजिंग मीडियम लाइट, बिल्कुल डिम करके. मैम पेड कोलैबोरेशंस क्या होता है? पेड कोलैबोरेशंस मींस दैट यू नीड टू गिव मनी. अगर आपको किसी के साथ, और यू नीड टू गेट मनी, या तो आप किसी को दे रहे हो पैसे या आप किसी से पैसे लेकर काम कर रहे हो. पेड कोलैबोरेशन मींस अगर मेरे पास एक ब्रांड आता है सेइंग कि वी विल डू पेड कोलैबोरेशन, दैट मींस वो आपको पैसे दे रहा है सो दैट आप उसके ब्रांड को एक्नॉलेज करके मार्केटिंग करो. ओके. स्वाति says I don't get audience on Insta live, जबकि मैं पहले से स्टोरी डालने लगती हूँ. जो लोग आते हैं वो भी कुछ देर बाद लीव कर देते हैं. How to stick to them? It happens. See, it happens. आपको engagement, curiosity build up करनी पड़ती है, and how you have to talk while doing it. आपको engagement कैसे करोगे? आप suppose tell them कि आज I'm going to teach you smoky eyes, I'm going to teach you cut crease, I'm going to teach you a colorful eye. ठीक है, करते करते उनको बताते रहो मेकअप के बारे में. उनको पूछो कि आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ, आज मैं आपको बेस सिखाने वाली हूँ, आज मैं आपको बेसिक बताने वाली हूँ. सो ऐसे ऐसे करते करते उनकी ओपिनियंस भी लो कि अच्छा यू टेल मी गाइस व्हिच लिपस्टिक शुड आई अप्लाई, व्हिच आई मेकअप शुड आई डू. आप जो बोलोगे मैक्सिमम जिसके वोट्स आएंगे आज मैं वो करके दिखाऊंगी. तो ऑब्वियसली जिसके आंसर्स क्वेश्चंस आंसर होते रहेंगे ना तो धीरे धीरे वो स्टिक रहेंगे, वो इन्वॉल्व रहेंगे, और जितना इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके थोड़े व्यूअर्स लीव नहीं करेंगे. इनिशियली देखो होगा, फर्स्ट डे तो इट्स नेवर लाइक दैट. सो ऑलवेज क्रिएट टू वे फ्लो ऑन इंस्टाग्राम or live. I'm talking about Instagram live. It should be a two-way process. ऐसा नहीं आप मेकअप करो आप करते जा रहे हो. You should talk to them. You should ask their opinions and answer their questions. Just like right now I'm doing. Absolutely. Okay. So yes, with that being said, I think most of the questions are now answered. Again, thank you so much, Achal, for being such a beautiful expert as always. Yes. Okay. So yes, everybody who might have any residual questions, there is a platinum session also on how you can grow your Instagram portfolio and ace your Instagram portfolio, which we definitely will have, ask the team to have Achal on board with us someday. So yes, for today, we can go ahead and wrap up today's session. Thank you so much for being a wonderful expert as always. And I really hope that each and everybody gets
to connect with you over on Instagram as well. Ollie Priya has a question, just one last that we'll take for now. My professional account has suddenly stopped working. Promotion nahi ho raha hai and suddenly engagement is dropping. I had 5,000 followers, but views are only 100 and 200. Likes are dropping to 10 and 20. What should she do? Okay, so first thing, I hope you haven't bought your followers. उस case में ज़्यादा होता है when we buy fake followers. That was the main thing which I missed. Please don't buy fake followers. सब करते हैं, लगता है करते होंगे एक stage के बाद. But when you do that, what happens? आपके followers कम होने लगते हैं, आपकी engagement, आप shadow ban हो जाते हो. Shadow ban is real. ओके, शैडो बैंस मीन आपकी इंगेजमेंट, मतलब आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो वो लोगों के पास जाना ही बंद हो जाता है, वो विजिबिलिटी नीचे होने लगती है. प्लीज डोंट बाय फेक फॉलोअर्स, जिसके वजह से आप शैडो बैन हो जाते हो, जिसके वजह से आपकी इंगेजमेंट लो होती है, ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स भी वो. देखो फेक फॉलोअर्स क्या होते हैं, फेक वालों को पता ही नहीं है कि वो आपको फॉलो करें. समडे दे रियलाइज कि अच्छा मैंने तो उसको फॉलो नहीं किया, वो कौन फॉलो कर देंगे. ऑर्गेनिकली ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट. ऑर्गेनिकली वाले ही लोग स्टिक करते हैं, जिसके वजह से आपका एल्गोरिथम बिल्कुल सेट रहता है. या ओके, आई थिंक प्राची, आर यू देयर?